वेलकम फ्रेंड्स। होपफुली बायोकेमिस्ट्री को आप एंजॉय कर रहे होंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपने जो एंजाइम्स रिलेटेड क्वेश्चंस थे उन क्वेश्चंस को भी आप तक सॉल्व करने की कोशिश की होगी एंड होपफुली बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम्स देखने को नहीं मिली। लास्ट क्लास में माय डियर फ्रेंड्स हमने एंजाइम्स के बारे में काफ़ी बातें डिस्कस की कि व्हाट आर द डिफरेंट types of enzyme, Michaelis Menten, allosteric enzyme, एलो एंजाइम, आइसो एंजाइम, एब एंजाइम, राइबो एंजाइम्स, उनके बारे में हमने डिस्कस किया था। उससे पहले हमने एंजाइम काइनेटिक्स के बारे में भी थोड़ा बहुत डिस्कस किया था, एंजाइम की क्लासेस के बारे में भी डिस्कस किया था, को फैक्टर्स और को एंजाइम्स क्या होते हैं उनके बारे में भी हमने डिस्कस किया था। आज की क्लास के अंदर माय डियर फ्रेंड्स वी आर गोइंग टू डिस्कस द डिफरेंट कैटालिटिक मैकेनिज्म यूज्ड बाय these enzymes, and then we will try to, you can say, study the regulation of an enzyme activity, that how the enzyme activity is regulated. So these are two important topics which we are going to discuss today. Moving to the topics. The first topic which we are studying is basically catalytic strategies, because we all know what we have studied up to now is that enzymes, they interact with a substrate. Enzymes, they interact with substrate, they stabilize substrate in a transition state. They stabilize substrate in transition state. But और एंजाइम सबस्ट्रेट को ट्रांजिशन स्टेट में स्टेबलाइज करता है, तो इससे क्या बेनिफिट होता है? तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि ट्रांजिशन स्टेट इज मोस्ट एनर्जेटिक स्टेट इन केमिकल रिएक्शन। अगर ट्रांजिशन स्टेट में स्टेबलाइज करने का मतलब है दैट इज नाउ मोर substrate could be converted into the product, because एक्टिवेशन एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत कम होती है। एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम है तो सबस्ट्रेट कुड बी रेडिली कन्वर्ट इनटू अ प्रोडक्ट। बट नाउ कमिंग टू द पॉइंट, व्हाट एक्चुअली द एंजाइम डू so that this substrate could be stabilized in a transition state, and thus the rate of reaction can be enhanced. One of the most common mechanism utilized by enzymes to stabilize substrate in transition state is the acid base catalysis. In acid base catalysis, what happens is that if it has been observed that if somehow a substrate which is in a ground state, if it, let's say, it moves to its transition state, and let's say this is the transition of state of substrate by providing some kind of energy, the transition state is very short lived. Very readily the transition state of substrate revert back to the ground state. वापस ट्रांजिशन स्टेट के स्टेट में आती है ग्राउंड स्टेट। और अगर सबस्ट्रेट की ट्रांस स्टेट जल्दी से ग्राउंड स्टेट में आ गई तो उस कंडीशन में सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। देयर मस्ट बी सम वे by which substrate could be stabilized in that trans state for comparatively longer period of time, and the way is that if substrate is
protonated or deprotonated. If substrate is protonated or deprotonated, so that it can bear some charge. It can be stabilized in transition state for long duration, and thus there is more chance of substrate could become to product. So या तो substrate को कोई H आयन दे दे जिससे substrate के ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज आ जाए, तो ऐसा होने पर सबस्ट्रेट को ट्रांजिशन स्टेट की तरह स्टेबलाइज, ट्रांजिशन स्टेट में स्टेबलाइज किया जा सकता है। या दूसरा तरीका, कुछ जगहों पर सबस्ट्रेट के अंदर से अगर कोई एच आयन को ले ले और एच आयन को कोई ले ले तो भी सबस्ट्रेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, और सबस्ट्रेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा तो अब ये वापस आसानी से ग्राउंड स्टेट में एंटर नहीं कर पाएगा। जैसे सबस्ट्रेट ट्रांजिशन स्टेट में जाए, आइदर देयर इज अ प्रोटोनेशन और अ deprotonation, so that substrate could be stabilized in transition state for comparatively longer period of time. But the thing is that who is going to give a H plus ion or who is going to take an H plus ion? So जो H plus ion देता है उसे एसिड कहा जाता है, जो H ion को लेता है उसे बेस कहा जाता है। If it is a case of specific, if it is a case of specific acid base catalysis, अगर ये specific acid base catalysis है तो उस केस में water act as acid, the form of water which can act as acid is hydronium ion, or base, that is H2. तो कई सारी रिएक्शंस ऐसी होती है जहां पर सिर्फ वाटर का इनपुट कर दिया जाए तो रिएक्शन की रेट बढ़ जाती। इट मीन्स वहां पर वाटर प्रोबेबली एसिड बेस कैटालिसिस में इन्वॉल्व है। देन water is neither strong acid nor a strong base. Thus, the result is that कि water जितनी जल्दी से H प्लस आयन देगा या H प्लस आयन लेगा उससे कई जल्दी सबस्ट्रेट ट्रांसस्टेट से वापस ग्राउंड स्टेट में आ जाए। इससे पहले कि वाटर खुद H प्लस आयन दे या वाटर H प्लस आयन को एक्सेप्ट करे, द सबस्ट्रेट मूव्स बैक इनटू द ग्राउंड स्टेट. So that's why we can say that water is not an excellent catalyst, but enzymes in their active site they are having various amino acids which can act as an acid or could act as a base. So if some other group except water is acting as a proton donor or a proton acceptor, so that substrate could be stabilized in transit state for comparatively longer duration of time. This is referred to as general acid base catalysis. Okay, so some of the groups which could participate in general acid base catalysis include, for example, glutamic acid and aspartic acid. Their RCOH form could act as a proton donor acid, or their RCO minus form could act as a hydrogen acceptor or proton acceptor. Similarly, lysine
and arginine, they can act as a proton donor as well as proton acceptor. लाइसिन आर्जिनिन अगर प्रोटोन है तो प्रोटॉन डोनर की तरह काम करेगी, और NH2 वाली फॉर्म है तो एक्सेप्टर का काम करेगी। इस तरीके से सिस्टीन, लाइसिन आर्जिनिन के बाद हम करें सिस्टीन, इन मल्टीपल रिएक्शन सिस्टीन की RSH फॉर्म में प्रोटॉन डोनर का काम कर सकती है, और RS माइनस वाली फॉर्म है तो वह प्रोटॉन एक्सेप्टर का काम कर सकती है। हिस्टिडीन तो कई सारी एंजाइम्स की एक्टिव साइट में प्रेजेंट होता है, जहां पर ये डी प्रोटोनेट भी हो सकता है और प्रोटोनेट भी हो सकता है। वेरियस एंजाइम्स दे आर हैविंग serine और tyrosine, they can also get protonate or deprotonate. So these are different groups which could act as a proton donor or proton acceptor in general acid base catalysis. Then moving to the next catalytic strategy, that is covalent catalysis. In general, when an enzyme and substrate they interact, most often non-covalent interactions they are involved. एंजाइम और सबस्ट्रेट जब आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो वहां पर सिर्फ नॉन कोवलेंट इंटरेक्शंस होते हैं। रिकॉग्नाइजेशन में कोवलेंट बॉन्ड का कोई रोल नहीं। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, कैटालिसिस के दौरान एंजाइम सबस्ट्रेट इंटरमीडिएट के साथ कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। Purpose is not recognition. Purpose of forming this covalent bond is to stabilize the substrate in a trans state. So let's say this is some kind of peptide or protein. In this there is a peptide bond, and now what happens is enzyme, some group of an enzyme attack at this peptide bond, and once this peptide bond is attacked, the condition becomes somewhat like this. This bond is broken. Let's say this could be an N terminus, this could be a C terminus, N terminus of peptide, and this could be an C terminus of peptide. This N terminus of peptide, it get covalently bind to an enzyme, and this C terminus peptide is being released. But now you can see that the substrate intermediate is forming a covalent bond with the active site of enzyme. Then there would be some other group which will attack at this, and this second product would also be released. So you can see that this is some kind of substrate. It is interacting with an enzyme by a non-covalent interaction, but there is some group in the active site, it attack this bond. Let's say it is forming now a covalent bond with the product 2, and P1 has been released. Then there is some other amino acid which will, once a P1 releases some other group, it attacked a covalent bond which is between a P2 and enzyme. As a result, P2 is also released. This is called as covalent catalyst. So what you will find is that most of हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, ज्यादातर जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं, they shows a covalent catalysis. As an example, we can take a case of chymotrypsin, a protease. Chymotrypsin एक protease है. We have already discussed that chymotrypsin is cut after aromatic amino acid. This chymotrypsin has a catalytic triad. इसमें 3 amino acids हैं जो catalytic side का formation करता है. So this catalytic triad, it has 3 amino acids, namely there is a histidine, there is a serine, and then there is an aspartic acid. These are 3 amino acids in chymotrypsin. And serine, most often it initiates or it carries out a nucleophilic activity. That's why these are referred to as serine protease. Now, important thing about the chymotrypsin is that it catalyzes the reaction by
two strategies. One is that it carries out an acid base catalysis, and second mechanism which is utilized by it is covalent catalysis. So they bring a charge on a substrate intermediate or transstate intermediate of substrate, as well as form a covalent bond with ion substrate intermediate. Then moving further, a third mechanism of catalysis could be a metal ion catalysis. There are various enzymes, they need a metal ion as a cofactor. So there are various enzymes needs some inorganic metal ion as cofactor. We have already studied lot of examples, जैसे magnesium for nuclease or nickel for urease or zinc for alcohol dehydrogenase or copper for tyrosinase and various other. But what this actually inorganic metal ion do? Metal ion चाहिए क्यों? So we can say that metal ion, whether it is a copper or any other metal ion also stabilize the substrate in a transition state. So metal ion, this assist in stabilization, of substrate in transition state. ट्रांजिशन स्टेट के अंदर स्टेबलाइजेशन करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. Okay, so the second type of strategy is referred to as metal ion catalysis. Moving, the fourth way of catalysis is referred to as electrostatic catalysis. In electrostatic catalysis, what happens is that active site create non-polar environment. By excluding water. वाटर को एक्सक्लूड कर नॉन पोलर एनवायरमेंट फॉर्म करता है. और नॉन पोलर एनवायरमेंट का फायदा क्या है? दैट नाउ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस वुड बी कंपैरेटिवली मोर स्टेबल. आई वांट टू से इज दैट better dipole interactions or electrostatic interactions occurs in non-polar environment. Result is that substrate, it could be stabilized more efficiently in a transstate. Substrate can be stabilized more efficiently in transition state. So there would be some better interaction between these groups, electrostatic, and if there are better interactions, a dipole would be there in active site, which will assist in stabilizing the substrate in that transition state. Okay, so note down this point. Then moving to next catalytic mechanism could be catalysis through proximity and orientation effect. In this
what enzyme do is that it forms some kind of active site where the two different substrates, substrate 1 and substrate 2, they fit into an active site, and now they are placed in the active site. Within the active site they are placed such that their functional group, they are in front of each other, and if their functional group, they are in front of reactive functional group, they are in front of each other, there would be a formation of bond and the product would be produced. So here simply हम ये कह सकते हैं एंजाइम एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है जहां पर अगर सबस्ट्रेट आकर इंटरेक्ट करेंगे तो उनके फंक्शनल ग्रुप एक दूसरे के फ्रंट में होंगे, और एक दूसरे फ्रंट में होंगे तो दे विल रिएक्ट एंड प्रोडक्ट वुड बी फॉर्म। इन एब्सेंस ऑफ एंजाइम रैंडम कोलिजन की वजह से फंक्शनल ग्रुप भी एक दूसरे के सामने आकर टकराएंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी काफी कम होगी। सो हियर यू कैन सी दैट substrate, they are held close in a space in a correct orientation, substrate 1 and substrate 2, and if they are in a correct orientation they react with each other to form a product. This is called as catalysis through proximity and orientation effect. So my dear friends, these are the different strategies of enzyme catalysis. Now moving to different regulatory strategies, that how different enzymes or their activities is being regulated. The most common and widespread way of an enzyme regulation is allosteric regulation. But prior to this, what we mean by regulation of enzyme activity? एंजाइम एक्टिविटी को रेगुलेट करने का मतलब जो एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन है उसकी रेट या तो और ज्यादा बढ़ जाए या उसकी रेट को और घटा दी जाए। अब किस तरीके से रेट को एनहेंस किया जा सकता है, कम किया जा सकता है, अकॉर्डिंग टू द फिजियोलॉजिकल नीड ऑफ दैट पर्टिकुलर सेल अंडर अ गिवन कंडीशन। That depends upon, so in field conditions कभी ऐसी स्थिति भी होगी जब एंजाइम्स को तेजी से काम कराना है, there would be conditions where an enzyme would be working very slow. So there are multiple ways by which enzymes they can be regulated. The most widespread and common way of an enzyme regulation is allosteric regulation. As we have studied already in allosteric enzymes, allosteric enzyme के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ये ऐसे एंजाइम्स के पास कैटालिटिक सबयूनिट अलग होती है जिसमें आइसोस्टेरिक साइट होती है, और उसके अलावा देयर आर सम रेगुलेटरी सबयूनिट्स। These are some regulatory subunit, these two are catalytic subunit. The function of catalytic subunit is to convert a substrate into a product. While some regulatory molecules, they bind to these regulatory subunits. These regulatory molecules could often refer to as modulators. इन्हें modulators भी कहा जाता है। कुछ एक्टिवेटर की तरह भी काम कर सकते हैं, कुछ इनहिबिटर की तरह भी काम कर सकते हैं। Now, what is the नेचर ऑफ दीज इफेक्टर्स? जो एलोस्टिक रेगुलेशन में ये रेगुलेटर्स हैं या जो इफेक्टर्स हैं, ये किस तरीके के हैं? कौन इफेक्टर की तरह काम कर रहा है रेगुलेट करने के लिए? उसके बेसिस पर दीज इफेक्टर्स could be divided into two types. One is a homotrophic effectors. That is when substrate itself act as effector. This is called as homotrophic effector. Now, a question may come in your mind कि ऐसा कैसे हो रहा है? तो सबस्ट्रेट जब तक एक्टिव साइट में बाइंड हो रहा है उसे सबस्ट्रेट कहा जाएगा,
और सबस्ट्रेट एक्सेस में होने पर, सबस्ट्रेट इफ इट इज इन एक्सेस, इट मे स्टार्ट बाइंडिंग टू सम अदर साइट एज वेल। सबस्ट्रेट दूसरी साइट पर भी जाकर बाइंड होना शुरू कर देते हैं, यानी आइसोस्टेरिक साइट के साथ साथ सबस्ट्रेट एलोस्टेरिक साइट पर भी बाइंड होता है। आइसोस्टेरिक साइट पर बाइंड होगा तो सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, एलोस्टेरिक साइट पर बाइंड होगा तो वह रेगुलेशन का काम करेगा। So it means there are two different sites in these enzymes where substrate can bind. One where the affinity is low, that is the active site, and another regulatory site where the affinity is comparatively low. So there is one site, इस site पर affinity high है, and there is another site where an affinity is low. Affinity कैरेटिक साइट की या आइसोस्टेरिक साइट की कम है, इसका थोड़ा सा भी सबस्ट्रेट हुआ तो वहां पर आकर बाइंड होगा। पर एलोस्टेरिक साइट के लिए एफिनिटी कम है, इसका मतलब सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगी, तो वह एक्टिव साइट के अलावा एलोस्टेरिक साइट पर भी जाकर बाइंड होना शुरू हो जाएगी। इसका एग्जाम्पल लिया जा सकता है, दैट इज अ रिएक्शन फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट कुड बी कन्वर्ट टू अ फ्रक्टोज 1,6 bisphosphate. This is substrate 1, and another substrate which is utilized during this reaction is an ATP, which also occurs over where ATP is being converted to ADP. This reaction is carried out by an enzyme fructose 1 या फॉस्फो एंजाइम का नाम है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1, short में could be referred to as PFK1. So you can easily make out over here is that ATP and fructose 6 phosphate, they are the substrate for this enzyme catalyzed reaction, and fructose 1,6 bisphosphate and ADP, they are products. फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट या एटीपी में से किसी की भी सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ाओ, वेलोसिटी बढ़नी चाहिए, तो हम एक सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर रहे हैं, और इंक्रीज करने के बाद ग्राफ देख रहे हैं, ग्राफ किस तरीके का हमें दिखाई दे रहा है। एटीपी कंसंट्रेशन को हम धीरे धीरे रेज कर रहे हैं। सो सिंस जो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 है वो एक एलोस्टिक एंजाइम है, एटीपी कंसंट्रेशन बढ़ी तो सिग्मोइडल तरीके से वेलोसिटी इंक्रीज हुई और फिर एक जगह पर स्टैटिक हो गई। When 100% enzymes they are involved in the reaction becomes static, rate becomes static. But now here the point is that कि जब और ज़्यादा ATP कंसंट्रेशन हाई की, ATP कंसंट्रेशन और ज़्यादा करने पर अब वेलोसिटी बढ़ने की बजाय वेलोसिटी वापस डिक्लाइन होना शुरू हो गई, वापस वेलोसिटी है वह डिक्रीज हो। So this graph could be divided into two halves. Something is happening to a low substrate concentration, something is happening to a high substrate concentration. जब ATP लो अमाउंट में है तो ATP यहां पर it is acting as substrate, but जब ATP बहुत ज्यादा अमाउंट में है तो उस दौरान ATP is acting as होमोट्रॉपिक इफेक्टर मॉलिक्यूल, होमोट्रॉपिक इफेक्टर मॉलिक्यूल की तरह ये काम कर रहा है। ओके, सो दिस इज an example of an allosteric regulation by homotrophic effector molecules. Sometime instead of a substrate, something else act as a effector molecule, then it is referred to as heterotrophic effector. So accept substrate some other organic molecule act as inhibitor and binds to allosteric site.
तो फिर उस कंडीशन में इस इफेक्टर को हम हेट्रोट्रॉफिक इफेक्टर कहेंगे। सो फिर ये हेट्रोट्रॉफिक इफेक्टर, फॉर दिस वी आर यूजिंग सम अदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ये सम अदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कौन, जो इफेक्टर का काम कर। सो मोस्ट ऑफन inhibitors are end product of metabolic cascade के व एंड प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से यहां पर कोई एक एंजाइम काम कर रहा है, एलोस्टिक एंजाइम काम कर रहा है, जिसके सबस्ट्रेट क्या है, डी, विच इज बीइंग कन्वर्ट टू अ प्रोडक्ट ए। सो सबस्ट्रेट इज डी, but if G is regulating the activity of enzyme, so G is anyhow किसी भी तरीके से वह इस एंजाइम का सबस्ट्रेट नहीं है, इसे कहा जाएगा हेट्रोट्रॉफिक इफेक्टर। फॉर एग्जाम्पल द सेम एंजाइम फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1, जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा था, जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करता है, उसका एलोस्टिक जो एक्टिवेटर है दैट इज फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट, और वो उसका सबस्ट्रेट नहीं है। और इसका जो इनिबिटर है डियर फ्रेंड्स फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज का कई सारे, बस वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इनिबिटर इज सिट्रेट, एंड सिट्रेट इज आल्सो नॉट अ सबस्ट्रेट फॉर दिस एंजाइम। सो दिस इज कॉल्ड एज रेगुलेशन बाय हेट्रोट्रॉपिक इफेक्टर्स। Then moving to another way of regulation, allosteric regulation, that is allosteric regulation जब कभी होता है तो we often use two term that is referred to as feedback and feed up activation. From feedback inhibition is often observed when the end product of metabolic reaction, the end product of metabolic reaction inhibit a key enzyme या key upstream regulatory enzyme. This is called as feedback inhibition. That is, let's say A say B, B say C, C say D, D say E. This is some kind of end product. And if end product accumulate, it inhibit a key enzyme. So let's say here there is some key enzyme which is working. यहाँ पर कोई key enzyme, allosteric enzyme है, वह काम कर रहा है इस जगह। So इस allosteric enzyme को E अगर एक्सेस में हो तो उसको आकर इनहिबिट करे, तो इसे फीडबैक इनहिबिशन कहा जाएगा। As an example, we can take a case of aspartate transcarbamylase, a short we refer to as ATCase, is feedback inhibited by UTP, CTP, and UTP and CTP are the end product of a pyrimidine biosynthetic path. Then there could be another strategy referred to as feed up activation.
Feed up activation is observed when the accumulated substrate activates a key downstream regulatory enzyme. तो उसे फीड अप एक्टिवेशन कहा जाएगा. As an example, we can consider a case, let's say an A is converted to B, C, D, E, F. This is some metabolic cascade. And let's say there is some regulatory enzyme at this step. And this step is slow. So, the step which is carried out by an enzyme is slow, and if it is slow, E will accumulate, and if E will accumulate, D will accumulate, D will accumulate means C will accumulate, C is accumulating, B will accumulate, and B if accumulate, A will accumulate. Accumulated A, it activates the slow enzyme ताकि स्लो से ये चेंज होकर कैसा हो जाए, फास्ट हो, ताकि सबस्ट्रेट का एक्युमुलेशन ना हो. Then this would be referred to as feed up activation. We can take an example of feedback activation. Accumulated, yeah, we can say accumulation of fructose 1,6-bisphosphate can activate downstream enzyme of glycolysis, that is pyruvate kinase. So, this would be referred to as feed up activation. आपने एग्जाम्पल लिख लिया, आगे बात करते हैं. Then moving further, another way of regulation, and one of the most common way of regulation you can say, is by covalent modifications. Regulation by an covalent modification. In allostetic regulation, चाहे वो होमोट्रॉफिक इफेक्टर है, चाहे हेटरोट्रॉफिक इफेक्टर है, वह जब एंजाइम के साथ आकर बाइंड होता है तो इट बाइंड्स थ्रू अ नॉन कोवेलेंट इंटरैक्शंस. लेकिन जो कोवेलेंट मॉडिफिकेशन है, और मोर रिवर्सिबल जो कोवेलेंट मॉडिफिकेशन है, यहां पर
एंजाइम के ऊपर कोई फंक्शनल ग्रुप कोवलेंटली लाकर जोड़ दिया जाएगा. सो लेट्स से दिस इज सम एंजाइम विच मे बी इन एक्टिव स्टेट. उसके ऊपर जैसे ही कोवलेंटली कोई ग्रुप ऐड कर दिया गया तो एंजाइम अपनी एक्टिव स्टेट से इनएक्टिव स्टेट में. ऑब्वियसली इस काम के लिए यू नीड अनदर सेट ऑफ एंजाइम. एंजाइम को रेगुलेट करने के लिए यू विल नीड अ रेगुलेटरी एंजाइम, बिकॉज नॉन कोवल इंटरेक्शंस अपने आप हो सकते हैं. डिफ्यूजन से दो मॉलिक्यूल टकराए, अगर उनमें मॉलिक्यूल कॉम्पेटिबिलिटी है तो एलोस्टिक रेगुलेशन हो जाएगा. लेकिन अगर कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करना है, स्पीडली करना है, तो यू हैव टू यूज सम काइंड ऑफ रेगुलेटरी एंजाइम. प्रोसेस को रिवर्स करने के लिए यू मस्ट हैव अ सेकंड सेट ऑफ रेगुलेटरी एंजाइम. आपके पास एक सेकंड सेट ऑफ रेगुलेटरी एंजाइम और होना चाहिए जो इस ग्रुप को वापस हटा सके. और अनदर रेगुलेटरी एंजाइम मस्ट बी देयर. यू कैन से रेगुलेटरी एंजाइम सेकंड मस्ट बी देयर, जो भी ग्रुप ऐड किया गया इसको हटाया जा सके. अगर एंजाइम एक्टिव स्टेट में था तो वो इनएक्टिव स्टेट में चला गया. रिवर्स इज ऑल्सो पॉसिबल दैट इफ ओरिजिनली एन एंजाइम वाज एन एक्टिव और उसके ऊपर अगर ग्रुप को जोड़ दिया गया है, ग्रुप ऐड कर दिया गया है, तो एंजाइम है वह इनएक्टिव स्टेट में चला जाएगा. इफ सम ग्रुप इज लेट्स से एडेड, इट इज मूविंग टू एन इनएक्टिव स्टेट. सो basically addition of some functional group to enzyme, it brings a conformational change. Okay, one of the simplest example of a reversible covalent modification which could be taken is phosphorylation, dephosphorylation. So most common way of regulation is covalent modification में, that is phosphorylation, dephosphorylation. In this strategy what happens is that there is one set of enzyme referred to as protein kinase. They add a phosphate group on the enzyme. There is an enzyme having some OH group. That OH group could be of serine, or it could be of threonine, or it could be tyrosine. This kinase enzyme, it add a phosphate group on the enzyme, due to which there is some kind of conformational change. There is an addition of phosphate group, and due to addition of this phosphate group, definitely there would be some change in charge, and if there is some change in charge, there would be a conformational change. If originally enzyme is active, enzyme may become inactive, and if enzyme is originally inactive, it may become active. So generally we say that whether this phosphate group, it has been added on activatory position or inhibitory position. If it is on activatory position, by addition of phosphate group, enzyme may be active. By adding a phosphate on a inhibitory position, the enzymatic activity could be decreased. इसका भी एक एग्जाम्पल हम कोट कर सकते हैं. वन एग्जाम्पल कुड बी कोटेड, दैट इज ग्लाइकोजन phosphorylase. Glycogen phosphorylase is active when phosphorylated. वह एक्टिव होता है, इसे नोट डाउन करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है.
Another example what we can take is a case of glycogen synthase, which is active when non-phosphorylated. So it is not like that कि एंजाइम के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप लगेगा तो ही एंजाइम है वह एक्टिव होगा, ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है। कई सारे एंजाइम्स के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप ऐड होता है तो दे बिकम फंक्शनल। देयर आर वेरियस एंजाइम जिनके ऊपर से फॉस्फेट ग्रुप अगर हटता है तो दे बिकम फंक्शनल। सेल साइकिल में आप पढ़ेंगे साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, एंजाइम्स का खुद का एक्टिवेशन या इनिबिशन इस बात पर डिपेंड करेगा कि उनके ऊपर फॉस्फेट ग्रुप एक्टिवेटरी पोजीशन पर है या फॉस्फेट ग्रुप इनिबिटरी पोजीशन पर। इवन कंप्लीट जो सिग्नल ट्रांसडक्शन कैस्केड है उसमें भी देखेंगे एक एंजाइम दूसरे एंजाइम के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप जोड़ता है जिससे वो एक्टिव होता है, फिर वो अगले एंजाइम के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप जोड़ता है और इस तरह से सिग्नलिंग कैस्केड आगे से आगे बढ़ती रहती है बाय फॉस्फोराइलेशन डीफॉस्फोराइलेशन। सो अगर हम ये कह दें कि जो एलोस्टिक रेगुलेशन है उसके अंदर जो सिग्नल लिगेंड आकर इंटरेक्ट कर रहे हैं, जो इफेक्टर आकर इंटरेक्ट कर रहे हैं, दे आर फ्रॉम विद इन अ सेल, they are either substrate or they are end product and they are binding non competitive। ज्यादा होंगे तो बाइंड हो जाएंगे, कम होंगे तो हट जाएंगे क्योंकि नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन। यहां पर जो कोवलेंट इंटरेक्शन के थ्रू बॉन्ड ऐड कराए जा रहे हैं वहां पर कोवलेंट बॉन्ड से जुड़ने पर अपने आप तो नहीं हटेगा, तो एक एंजाइम अगर हमें जोड़ने के लिए इस्तेमाल करना है तो एक दूसरा एंजाइम इस्तेमाल करना पड़ेगा उसको हटाने के लिए। और जनरली कब ग्रुप जुड़ना चाहिए कब ग्रुप हटना चाहिए उसके लिए बाहर से सिग्नलिंग होती है। सो देयर इज सम काइंड ऑफ एक्सट्रिंसिक सिग्नल। सो वी कैन से दिस कोवलेंट मॉडिफिकेशन और कोवलेंट मॉडिफिकेशन इज अ काइंड ऑफ एक्सट्रिंसिक रेगुलेशन। ये एक्सट्रिंसिक रेगुलेशन का एग्जांपल लिया जा सकता है। सो एलोस्टिक रेगुलेशन को इंट्रिंसिक रेगुलेशन का बेस्ट एग्जांपल लिया जा सकता है, जबकि एलोस्टिक रेगुलेशन को एक्सट्रिंसिक रेगुलेशन का। देन मूविंग फर्दर और आगे बात करते हैं। रिवर्सिबल कोवलेंट मॉडिफिकेशन में ही एक और एग्जांपल लिया जा सकता है, दैट इज न्यूक्लियोटाइडेशन, जहां पर फॉस्फेट ग्रुप की बजाय न्यूक्लियोटाइड का एडिशन किया जा रहा है। एज एन एग्जांपल वी कैन टेक अ केस ऑफ an enzyme glutamine synthetase, enzyme glutamine synthetase of E. coli. It is regulated in this particular fashion. What I want to say here is that the enzyme glutamine synthetase is normally active. enzyme है वो normally active है। Let's say this is some tyrosine जो बाहर की तरफ exposed है। Let's say this is some nucleotide ATP। जब फॉस्फोराइलेशन की हम बात कर रहे थे तब हम भी कह रहे थे कि ATP है वह ADP में कन्वर्ट होता है और फॉस्फेट ग्रुप एंजाइम के ऊपर जोड़ दिया जाता है वन एंजाइम काइनेज। पर रिवर्स भी तो हो सकता है कि फॉस्फेट ग्रुप रिलीज हो गया और पीछे जो बचा हुआ मॉलिक्यूल है वह टायरोसिन के ऊपर जोड़ दिया गया जिससे एंजाइम की कन्फॉर्मेशन में चेंज आ गया। लेट्स से दिस इज द कन्फॉर्मेशनल चेंज। सो एट द टायरोसिन there is an addition of a group ADP। जैसे फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करने पर चार्ज में फर्क आ रहा था तो ADP को भी ऐड करने पर चार्ज फर्क आया क्योंकि ADP पर तो चार्ज -3 होता है और -3 चार्ज होते ही एंजाइम जो एक्टिव था नाउ इट मे गेट कन्वर्ट टू अ इनएक्टिव फॉर्म। पहले सिर्फ फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो रहा था तो फॉस्फोराइलेशन, लेकिन अब एडिशन हो रहा है न्यूक्लियोटाइड का। सो न्यूक्लियोटाइड का एडिशन हो रहा है, सो दैट्स व्हाई इट इज रेफर्ड टू एज न्यूक्लियोटाइडेशन। अनदर जो एग्जांपल कोट किया जा सकता है दैट इज बेसिकली
ADP ribosylation, where there is an addition of a ADP ribosyl group to the arginine of target enzyme. That is, as an example, we can take a case of adenylate cyclase of RBC or erythrocytes that is activated by an ADP ribosylation. Enzyme normally is in active state, and when it is in active state, the function of this enzyme is that it can convert an ATP into cyclic AMP. That is the function of adenylate cyclase. And let's say this is some arginine R chain, arginine है और arginine की कोई R chain बार की तरफ exposed है. There is an regulatory enzyme जो ADP राइबोसाइल ग्रुप को ऐड करेगा, उसे कहा जाएगा ADP राइबोसाइलेज. तो ADP राइबोसाइलेज एंजाइम क्या करता है, इस आर्जिनिन के ऊपर ADP राइबोसाइल ग्रुप को ऐड कर देता है, और जैसे ही ADP राइबोसाइल ग्रुप इसके ऊपर ऐड हुआ आर्जिनिन की R चेन पर, जैसे ही ADP राइबोसाइल ग्रुप आकर ऐड हुआ, कन्फॉर्मेशन चेंज हो जाती है, because ADP ribosylate also has a -2 charge. Question may come in your mind that कहां से आया ADP ribosylate group? तो निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड इट प्रोवाइड्स एन ADP ribosylate group, यानी एक निकोटिनामाइड तो रिलीज हो जाता है और बाकी का पार्ट ADP ribosylate group है वो एंजाइम के ऊपर ऐड हो गया. That is the, you can note down that donor for ADP ribosyl group is NAD. जैसे फॉस्फोराइलेशन या न्यूक्लियोटाइडेशन के डोनर ATP था, तो ADP राइबोसाइलेशन के लिए जो डोनर है वो डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जा सकता है. डोनर फॉर ADP राइबोसाइल ग्रुप इज NAD. दैट इज, आप NAD का स्ट्रक्चर देखें तो उसमें एक निकोटिनामाइड है, निकोटिनामाइड बेस है, फिर उसके अंदर राइबोज शुगर है, फिर फॉस्फेट ग्रुप है, फिर वापस फॉस्फेट ग्रुप है और राइबोज शुगर है, और एक और बेस एडेनिन है, एडेनिन वाली बेस. सो दिस इज एन एडेनिन. ओके, इसलिए दिस इज रेफर टू एज डाइन्यूक्लियोटाइड. इट इज रेफर टू एज डाइन्यूक्लियोटाइड बिकॉज एक तरफ एडेनिन राइबोज और शुगर, एडेनिन राइबोज शुगर और फॉस्फेट है, तो दूसरी तरफ निकोटिनामाइड राइबोज और फॉस्फेट. पर ADP राइबोसाइलेशन के अंदर ये कंप्लीट ग्रुप यहां से लेकर यहां तक कंप्लीट ग्रुप है, वह टारगेट एंजाइम के ऊपर ट्रांसफर होता है. सिर्फ रिलीज क्या हो जाता है, जो रिलीज हो गया दैट इज द निकोटिनामाइड, सिर्फ निकोटिनामाइड वाला पार्ट है वह हट जाए. तो पीछे जो ये ग्रुप बचा है इसका नॉमेनक्लेचर आप आराम से कह सकते हैं क्या है. देखो, ये एडेनिन प्लस शुगर प्लस 2 फॉस्फेट, यहां तक वाला स्ट्रक्चर तो क्या होगा, ADP. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ADP, दैट इज एडेनिन प्लस शुगर प्लस 2 phosphate. This is referred to as ADP. और ADP के साथ एसोसिएटेड कौन सा है ग्रुप, एक्स्ट्रा जो ग्रुप जुड़ा हुआ है दैट इज राइबोस. सो द होल ग्रुप विच इज बीइंग ट्रांसफर्ड इज रेफर्ड टू एज ADP. यहां से लेकर यहां तक कंप्लीट ग्रुप ट्रांसफर होता है, तो ये कंप्लीट ग्रुप जो ट्रांसफर हुआ है that is referred to as ADP ribose group. Process referred to as ADP ribosylation. और ADP राइबोसाइल ग्रुप के ऊपर भी तो चार्ज ही होगा. ये वाला ग्रुप फॉस्फेट की वजह से नेगेटिव चार्ज, इस फॉस्फेट की वजह से नेगेटिव चार्ज, सो देयर वुड बी अ -2 चार्ज ड्यू टू दिस ADP राइबोसाइल ग्रुप. सो इंपॉर्टेंट बात सिर्फ इतनी है कि ADP राइबोसाइलेशन कई जगहों पर और भी होगा, वहां पर
एडीपी राइबोसिल ग्रुप को डोनेट कौन करता है? तो एडीपी राइबोसिल ग्रुप को डोनेट करने का काम करता है एनएडी। देन द अदर वे of covalent modification, or more reversible covalent modification, is a disulfide reduction, or we can also use a term that is sulfa hydration or desulfa hydration. When signal 1 would be there, there could be sulfa hydration. A signal 2 if it is there, there could be a desulfa hydration. वहीं पर desulfa hydration भी देखने को मिल सकता है. Most of plants के अंदर कैल्विन साइकिल के एंजाइम्स जो कि क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में काम करते हैं आर रेगुलेटेड बाय दिस वे, इस तरीके से रेगुलेट किए जाते. यानी एंजाइम हो सकता है कि इस तरीके की कंडीशन में है, लेट्स से यहां पर कहीं पर डाइसल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, इस जगह पर भी कहीं पर डाइसल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, तब तक एंजाइम हो सकता है इनएक्टिव. जैसे ही कोई बाहर से सिग्नल 1 हो, सिग्नल 1 होने पर जैसे लाइट हो सकता है, रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट क्रिएट हो, और रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट क्रिएट हो तो उसकी वजह से अब जो ये डाइसल्फाइड बॉन्ड है, इनका डाइसल्फाइड बॉन्ड को ब्रेक किया जा सकता है, सल्फा हाइड्रेशन किया जा सकता है, इनका रिडक्शन किया जा सकता है, और रिडक्शन करने से अब ये ही एंजाइम इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है. ये एस कोवलेंटली हाइड्रोजन इसके साथ भी जुड़ गया, कोवलेंटली हाइड्रोजन इधर की तरफ भी जुड़ गया, कोवलेंट बॉन्ड से हाइड्रोजन यहाँ पर भी आ गया, कोवलेंट बॉन्ड से हाइड्रोजन यहाँ पर भी आ गया. ऐसा होते ही ये एक्टिव हो गया. सो द प्रोसेस is leading to an addition of hydrogen covalently to a sulfur, that's why it is referred to as sulfa hydration. इसे हमने sulfa hydration कहा, जिसकी वजह से कई सारे जो डार्क रिएक्शन के एंजाइम्स हैं इनएक्टिव फॉर्म से वह एक्टिव फॉर्म में आ जाते हैं. ओके, यानी कई सारे एंजाइम्स इनएक्टिव होते हैं, थोड़ा सा बीटा मरकैप्टोनोल का ट्रीटमेंट दो तो एंजाइम एक्टिव हो जाता है. इससे क्या समझ में आता है? इससे वापस ये समझ में आता है कि एंजाइम को एक्टिव होने के लिए डाइसल्फाइड बॉन्ड का ब्रेक होना जरूरी है या डाइसल्फाइड बॉन्ड रिडक्शन होना जरूरी है. सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ रिवर्सिबल कोवलेंट मॉडिफिकेशन. अनदर वे ऑफ एंड रेगुलेशन ऑफ एन एंजाइम एक्टिविटी इज बाय प्रोटियोलिटिक क्लीवेज. कई सारे एंजाइम्स के अंदर व्हाट यू फाइंड इज दैट दे आर हैविंग सम काइंड ऑफ इनहिबिटरी पेप्टाइड व्हिच इनहिबिट द एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम. लेट्स से दिस इज सम काइंड ऑफ इनहिबिटरी पेप्टाइड. Okay, so this is the active site, but this active site is closed by some kind of inhibitory peptide. इस इनहिबिटरी पेप्टाइड का यहां से क्लीवेज होना जरूरी है. क्लीवेज ऑफ दिस इनहिबिटरी पेप्टाइड इज नेसेसरी. दिस इनहिबिटरी पेप्टाइड मस्ट बी removed. That is some kind of inhibitory peptide which has to be removed. And once this inhibitory peptide is removed, ये inhibitory peptide यहाँ से हट जाती है. अगर inhibitory peptide यहाँ से हट जाती है, जो एंजाइम अब तक इनएक्टिव था वही एंजाइम अब अपनी एक्टिव फॉर्म में आ गया. ये इनहिबिटरी पेप्टाइड इधर की तरफ साइड में हमने हटा दी बाय प्रोटियोलिटिक क्लीवेज. ऐसा होते ही अब एक्टिव साइट है वह ओपन है, और एक्टिव साइट अगर ओपन है तो अब सबस्ट्रेट यहाँ पर आकर बाइंड हो सकता है, और सबस्ट्रेट अगर इस जगह पर आकर बाइंड हुआ तो सबस्ट्रेट कुड बी कन्वर्ट टू रेडिली इनटू अ प्रोडक्ट. सो ऐसा करने के लिए कोई सिग्नल होना चाहिए जिसकी वजह से कोई प्रोटियोलिटिक क्लीवेज.
इनहिबिटरी पेप्टाइड हट जाए। नाउ दिस process of regulation by proteolytic activation is this is a irreversible process। अब तक जो दोनों मैकेनिज्म हमने पढ़े थे, एलोस्टेरिक रेगुलेशन या इवन कोवलेंट मॉडिफिकेशन, बोथ द वर रिवर्सिबल। पर यहां पर अगर एंजाइम को एक बार एक्टिव कर दिया गया तो वापस एंजाइम को इनएक्टिव नहीं किया जा सकता। इसलिए हम ये कहते हैं कि द प्रोसेस इज इरिवर्सिबल। बट इसका मतलब तो एंजाइम लगातार काम करते रहेंगे, बट सच एंजाइम्स हैव शॉर्ट हाफ लाइफ ड्यू टू विच बहुत कम समय में ही ये अपनी इनएक्टिव फॉर्म में चले जाते हैं और काम करना बंद कर देते हैं। इससे ज्यादा टेंशन वाली बात भी नहीं कि एक बार एंजाइम एक्टिव हो गया और बस इनएक्टिव कैसे करेंगे, करने की जरूरत नहीं है। एंजाइम खुद ही अपने आप ही डी नेचर हो जाएगा, नॉन फंक्शनल हो जाएगा, क्योंकि इनका हाफ लाइफ कम होता है। कई सारे एग्जाम्पल हैं जो प्रोटियोलिटिकली एक्टिवेट होते हैं, जैसे कई सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स इस तरीके से एक्टिवेट होते हैं, जैसे कि पैप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन एटसेट्रा, chemotrypsinogen etc. They would be converted to pepsin or they would be converted to an trypsin by proteolytic cleavage। पैप्सिनोजन का पैप्सिन में कन्वर्जन, ट्रिप्सिनोजन का ट्रिप्सिन में कन्वर्जन। इसके अलावा अनदर एग्जांपल कुड बी वेरियस एपोप्टिक एंजाइम्स। एपोप्टिक एंजाइम भी हमेशा सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं बट इनएक्टिव स्टेट में मेंटेन करके रखे जाते हैं। दे आर इन अ स्टेट ऑफ प्रोकैस्पेस और प्रोटियोलिटिकली क्लीवेज होकर दे कुड बी कन्वर्टेड टू अ कैस्पेस, दैट इज बाय प्रोटियोलिटिक क्लीवेज। उसके अलावा ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, उनको भी प्रोटियोलिटिकली एक्टिवेट किया जा सकता है। ब्लड में कई सारे कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स हैं, उनको भी प्रोटियोलिटिकली एक्टिवेट किया जा सकता है। देन another mechanism could be a substrate inhibition। Substrate inhibition happens when substrate concentration is very high। It is somewhat like this। So substrate की concentration बढ़ाएं, वेलोसिटी को ऑब्जर्व करें, रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक कर्व आता है, लेकिन बहुत ज्यादा सबस्ट्रेट होने पर ऐसी कंडीशन आने लग जाए। If you start getting this kind of condition case, it means something is wrong, means ज्यादा सबस्ट्रेट प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है इस पॉइंट के बाद। तो और ग्राफ से ही साफ पता चल रहा है कि ये एलोस्टिक एंजाइम नहीं है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक कर्व है। ग्राफ से ही साफ पता चल रहा है कि सबस्ट्रेट होमोट्रॉपिक इफेक्टर वाला केस नहीं। तो फिर सबस्ट्रेट ज्यादा होने पर कैसे इनहिबिट करता है? मोस्ट प्रोबेबली एक्टिव साइट हैज टू डिफरेंट sites for substrate binding। One is at low affinity site and another is a high affinity site। दो साइड्स है, एक लो एफिनिटी वाली और एक हाई एफिनिटी वाली। जब सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन कम है तब एंजाइम की लो एफिनिटी वाली साइट पर सबस्ट्रेट आकर, सॉरी हाई एफिनिटी वाली साइट पर सबस्ट्रेट आकर बाइंड हो जाता है। इस तरीके से हम ड्रॉ कर लेते हैं। So there is, this is having more number of interaction with the substrate, here comparatively lesser number of interactions। So जब सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन कम हो तो सबस्ट्रेट इस जगह पर आकर बाइंड होता है। दिस इज द बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट। Substrate is binding to this site
and when substrate bind to this site, substrate is also converted to a product. But substrate बहुत ज़्यादा होने पर, when substrate is very high, substrate can also occupy some other site as well. Substrate इस site पर भी आकर bind हो सकता है. This is a low affinity site. Here substrate binds only when concentration is high, and here substrate bind even when concentration is low. ओके, सो ज्यादा सबस्ट्रेट होने पर एक्टिव साइट में सबस्ट्रेट कुछ इस तरीके से बाइंड हो जाता है कि अब वह एंजाइम को सबस्ट्रेट एंजाइम का सबस्ट्रेट टू प्रोडक्ट कन्वर्शन को रोकता है. देन अनदर मैकेनिज्म इज प्रोडक्ट इनहिबिशन. दैट इज वेरी सिंपल थर्मोडायनेमिकल कंसेप्ट कि एंजाइम होगा, सबस्ट्रेट, there is a formation of ES complex. ES complex would be converted to an enzyme plus product. But if product is more, product will favor the reaction in a backward direction, and if backward direction is being favored, then forward direction would be less, rate of forward direction will be affected. So अगर product पहले से ही ज़्यादा है तो product ज़्यादा होने पर वह reaction को thermodynamically backward direction में operate कराएगा. So this is called as product inhibition. In simple words, we can say that when product accumulates, it do not leave active site. एक्टिव साइट को छोड़ेगा नहीं क्योंकि प्रोडक्ट पहले से ज्यादा है. Thus forward rate of reaction is affected. Then a last way of regulation of an enzyme activity could be induction and repression. So let's say there are genes for an enzyme. There will be two different conditions, and we will study in molecular biology. Gene के upstream में there are some promoter sequences and there are some regulatory sequences. There could be multiple type of regulatory sequences. Some sequences where activator will bind, and there would be some sites where a repressor protein can bind beside a normal promoter sequence. So promoter, and with promoter there are some, you can say, regulatory sequences, and this is a gene of interest which is to be expressed. This is the gene. So if there is a condition 1, under this condition case there could be some repressor protein, and if repressor protein is there, it binds to this site, and if repressor protein binds to this site, there is negligible expression of this transcription, no enzyme is produced. No enzyme is produced because some repressor protein is bound, due to which ET decreases, and ET decreases means Vmax decrease, क्योंकि जो पहले से बने हुए एंजाइम हैं उनकी हाफ लाइफ कुछ ना कुछ तो होगी, धीरे धीरे वो एंजाइम भी नॉन फंक्शनल होते जाएंगे. देन इफ सम एक्टिवेटर प्रोटीन इज देयर इंस्टेड ऑफ inhibitor, if there are some activator protein, if they are there,
दे विल रिक्रूट अलाउ आरएनए पॉलीमरेज टू बाइंड ओवर हियर। अब आरएनए पॉलीमरेज तेजी से यहाँ पर आकर बाइंड होगा और आरएनए पॉलीमरेज तेजी से आकर बाइंड हुआ तो ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसक्रिप्शन होने पर एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए से more enzyme would be produced, means transcription would be followed by translation. So more enzyme means total concentration of enzyme, total concentration of enzyme increases. तो ET अगर ज़्यादा हुआ तो Vmax भी बढ़ जाएगा. So this is the regulation by induction and repression. बाकी जितने भी तरीके हैं एलोस्टिक रेगुलेशन, कोवलेंट मॉडिफिकेशन या प्रोटीयोलिटिक क्लीवेज या सब्स्ट्रेट इनहिबिशन या प्रोडक्ट इनहिबिशन, दे टेक्स अ वेरी फ्रैक्शन ऑफ टाइम, सेकंड्स टू मिनट्स रेगुलेट करने के लिए. पर यहाँ पर एंजाइम की कंसंट्रेशन को बढ़ाना पड़ रहा है या घटाना पड़ रहा है, इट मे टेक अ टाइम, इट मे बी फ्यू हावर्स टू फ्यू डेज. सो सिग्नल आपने दिया, इमीडिएटली एंजाइम की कंसंट्रेशन कम नहीं हो जाएगी, इट विल टेक अ टाइम. बट दिस इज द रेगुलेटरी स्ट्रेटजीज बाय रेगुलेटिंग द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम. मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में लैक ऑपरेन आप पढ़ेंगे. लैक ऑपरेन में इसी तरीके से रेगुलेशन होता है. लैक्टोज है तो लैक ऑपरेन ऑन होता है, लैक्टोज नहीं है तो लैक ऑपरेन को रिप्रेस स्टेट में करके रखा जाता है. देन द लास्ट टॉपिक फ्रॉम द एंजाइम इज बेसिकली द enzyme purification. That is how you go for an purification of enzyme. So first what you do, as we have studied in a technique, in this what you do is you go for different steps. Okay, so you go for different steps. For example, we are having a crude extract, and from crude extract you will go for a step 1, then there will be some step 2, then there would be some step 3, and finally you will get some purified enzyme. Okay, हर स्टेप में क्या होगा, इम्प्योरिटी हटती जाएगी, कुछ इम्प्योरिटी है वह हटती जाएगी. पर्पज ऑफ every step is to remove impurity. You can go for gel permeation, ion exchange chromatography, affinity chromatography, step by step, HPLC etc. उस दोनों कुछ टर्म्स हैं एंजाइम प्यूरिफिकेशन हम इस्तेमाल करते हैं. वन इज रेफर्ड टू एज टोटल एक्टिविटी. टोटल एक्टिविटी इज measured in the terms of units. That is, basically total activity is total amount of an enzyme which catalyze, yeah, total amount of, we can say, extract which catalyze micromole of substrate into product. कंप्लीटली जो भी हमारा एक्सट्रैक्ट है उसकी कितनी एक्टिविटी है, दैट्स कॉल्ड एज टोटल एक्टिविटी. एक टर्म और होती है स्पेसिफिक एक्टिविटी. दैट इज एंजाइम एक्टिविटी पर milligram of protein is referred to as specific activity. Then total protein, which is often measured in a milligrams or gram, which you quantify at different steps. Then unit, yeah, we can say fold purification, which represents basically the enhancement in activity, yeah, more broadly specific activity as compared to crude extract. So these are some of the terms which we use during an enzyme purification. Okay.
moving to next thing, that goal of enzyme purification is that there should be minimum loss of enzyme. In other words, we can say that maximum yield, यानी जो स्टेप हम एक के बाद दूसरा स्टेप, दूसरे बाद तीसरा स्टेप, तीसरे बाद चौथा स्टेप कर रहे हैं, उसमें एंजाइम का लॉस ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एंड देयर मस्ट बी मैक्सिमम इंक्रीज इन स्पेसिफिक एक्टिविटी। यानी अगर एंजाइम का 1 मिलीग्राम भी लें तो बहुत ज़्यादा एक्टिविटी आए, और ऐसा तभी हो सकता है जब एंजाइम प्योर हो। क्रूड एक्सट्रैक्ट है, उसका 1 मिलीग्राम लोगे तो बहुत ज्यादा एक्टिविटी नहीं आएगी। सो दीज आर द गोल ऑफ एन एंजाइम प्यूरिफिकेशन। और इवन किसी प्रोटीन को भी प्यूरिफाई कर रहे हैं, दैट इज द मेन एम, दैट इज मिनिमम लॉस ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोटीन एंड मैक्सिमम एनहांसमेंट इन स्पेसिफिक एक्टिविटी। सो फॉर दिस we can consider a purification table which could be represented like this. Let's say these are some of the steps, serial number, then this, or we can say step, technique which is being utilized, total activity we can put over here, specific activity here, and here we can say fold purification, and last step in purification table we can say a percentage yield. Let's say these this is the purification table. So we are now going through different steps. Let's say सबसे पहले आपने, हमारे पास कोई क्रूड एक्सट्रैक्ट है, मीन्स वी आर नॉट यूजिंग एनी काइंड ऑफ टेक्निक। यहाँ पर एक और भी लिख दें कि प्रोटीन की अमाउंट भी लिख दें, प्रोटीन की अमाउंट हम मिलीग्राम में बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम टोटल एक्टिविटी की बात कर रहे हैं, टोटल एक्टिविटी इज इन यूनिट्स, स्पेसिफिक एक्टिविटी इज यूनिट पर मिलीग्राम। ओके, सो क्रूड एक्सट्रैक्ट सपोज हमारे पास 1000 मिलीग्राम, टोटल एक्टिविटी हमने मेजर की, टोटल एक्टिविटी 10,000 आई, तो स्पेसिफिक एक्टिविटी कितनी हुई 10,000 डिवाइड बाय 1000, specific activity is 10. That is, if you take 1 milligram of this crude extract, activity would be 10. Then fold purification, अभी तो कोई स्टेप ही नहीं की, इसलिए अभी ये बात आएगी नहीं। परसेंटेज यील्ड हमारे पास अभी 100% एंजाइम। देन सेकंड स्टेप में सपोज व्हाट वी डिड इज सॉल्ट प्रेसिपिटेशन। सॉल्ट प्रेसिपिटेशन से हम हाइड्रोफोबिक जितने भी एंजाइम्स हैं उनको रिमूव कर सकते हैं। सपोज सॉल्ट प्रेसिपिटेशन के बाद हमारे पास प्रोटीन जो पीछे बचा वह 900 मिलीग्राम बचा, मीन्स या मान लें और सिंप्लीफाई करके 700 मिलीग्राम प्रोटीन बचा, यानी 300 मिलीग्राम कुछ इम्प्योरिटीज हट गई। टोटल एक्टिविटी 10,000 की बजाय हमारे पास अब लगभग लेट्स से 9,000 के आसपास है। थोड़ा और सिंप्लीफाई करने के लिए 600 मिलीग्राम प्रोटीन को मान लें, तो स्पेसिफिक एक्टिविटी अब हमारे पास कितनी होगी 15। कितना फोल्ड प्यूरिफिकेशन हुआ, तो स्पेसिफिक एक्टिविटी यहाँ पर 10 थी, 10 से कितनी हो गई 15, कितना चेंज आया 1.5, पर टोटल एक्टिविटी अब सिर्फ 9,000 रही, इसका मतलब 10% एंजाइम भी लॉस हुआ है। थर्ड हमने सपोज जेल परमिएशन क्रोमेटोग्राफी की। जेल परमिएशन क्रोमेटोग्राफी करने पर हमारे पास अमाउंट जहाँ साइज के बेसिस पर सेपरेशन किया, अब हमारे पास प्रोटीन की अमाउंट 200 ही रही, पर टोटल एक्टिविटी 8,000 है। स्पेसिफिक एक्टिविटी कितनी होगी 40। कितना फोल्ड प्यूरिफिकेशन हुआ, तो इसके कंपेरिजन हम बात करेंगे 4 फोल्ड। गेन कितना है 80% यील्ड है। इस तरीके से फोर्थ स्टेप हमारा हो सकता है आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। आयन एक्सचेंज में चार्ज के बेसिस पर सपोज किया। अब प्रोटीन हमारे पास बचा 100 मिलीग्राम,
एक्टिविटी 7500 टोटल एक्टिविटी, स्पेसिफिक एक्टिविटी 75, कितने टाइम फोल्ड प्यूरिफिकेशन हो गया 7.5, 75% यील्ड हो गई। सपोज हमने एक लास्ट स्टेप और कर दी, दैट इज एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। अब हमारे पास प्रोटीन सिर्फ 50 मिलीग्राम बचा, सपोज एक्टिविटी है वो हमारे पास लगभग अभी भी 7000 के आसपास है। तो अब या थोड़ा और सिंप्लीफाई करने के लिए मैं इसको और प्रोटीन को, ताकि हमारा कोई इजी हो जाए, 30 मिलीग्राम पीछे प्रोटीन बचा, और पास स्पेसिफिक एक्टिविटी कितनी हो गई 200। कितने टाइप फोल्ड प्यूरिफिकेशन हो गया इसके कंपेरिजन बात करेंगे तो 20 टाइम्स। कितनी परसेंट यील्ड रही, तो परसेंटेज यील्ड कितनी रही 35, सॉरी परसेंटेज यील्ड कितनी रही 70%। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जब कभी भी हम एंजाइम प्यूरिफिकेशन की बात करते हैं तो उस दौरान टोटल एक्टिविटी नो डाउट डिक्लाइन होती है, क्योंकि 100% एंजाइम को पीछे नहीं बचाया जा सकता, परसेंटेज यील्ड भी कम होती है, पर कोशिश की जाए कि परसेंटेज यील्ड में डिक्लाइन कम से कम हो, जितना कम परसेंटेज यील्ड में डिक्लाइन हो उतना ही बेटर है, ऐसी कोशिश की जानी चाहिए। देन फोल्ड प्यूरिफिकेशन बढ़ना चाहिए, सबसे बढ़िया जो एम है दैट इज चेंज इन स्पेसिफिक एक्टिविटी कंटिन्यूअसली इंक्रीज होनी चाहिए। सो एम क्या है हमारा, तो एम की अगर हम बात करें तो मेजर एम इज दैट इन there must be maximum increase, there must be a maximum increase in specific activity and maximum percentage yield, ये हमारे एम होते। सो दिस इज अबाउट द एंजाइम प्यूरिफिकेशन। अगर किसी स्टेप पर आपको ये लगे कि टोटल एक्टिविटी बढ़ गई है 10,000 से 15,000 हो गई, तो ये पॉसिबल नहीं। अगर पर फिर भी अगर किसी स्टेप पर टोटल एक्टिविटी बढ़ती हुई दिखाई दे, तो इसका मतलब इस स्टेप से पहले कोई ना कोई वहां पर इंप्योरिटी थी जो टोटल एक्टिविटी को कम करके रख रही थी, और इंप्योरिटी जैसे ही वहां से हटी टोटल एक्टिविटी है वह इंक्रीज हो गई। ओके, सो इफ इनहिबिटर इज देयर इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो, सिर्फ उसी पर्टिकुलर सिनेरियो के अंदर टोटल एक्टिविटी है वह बढ़ सकती है। Now moving to some of the questions which has been asked in CSR NET examinations. Basically अब प्रोटीन से एंजाइम्स के साथ या प्रोटीन एंजाइम के अलावा कुछ क्वेश्चंस है वो रामचंद्रन प्लॉट से भी है। उन क्वेश्चंस को एक बार देखते हैं कि नेट में किस तरह के क्वेश्चन अब तक आ चुके हैं। तो मूविंग टू क्वेश्चंस, पहले हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, that is questions which has been asked from Ramachandran plot in CSR NET examinations. So we will have a look on these questions and try to analyze. I am sure कि आपने इन questions को पहले solve कर लिया होगा, but if you are facing any kind of problem, तो concepts को वापस recheck कर लें। So one of the question which has been asked in CSR NET examination is that the peptide unit C alpha CO means, if we could represent it like this, C alpha C double bond O NH C alpha, okay, और कहा गया है कि is a planar due to rotation around which bond? So answer is straightforward, it is planar due to the partial double bond character of a peptide bond. So answer must be, which is also represented by symbol omega. So answer would be restriction around C prime, because it's C double bond O को C prime कहा गया है, C prime N bond. So answer would be option 2. Got it? Moving to the next question. Question number 2 में कहा गया कि the area of allowed region in Raman plot will be least for, सबसे कम एरिया कौन सा होगा? एक तो हमने डायरेक्ट याद कराया था कि सबसे ज़्यादा एरिया ग्लाइसिन के लिए होगा और सबसे कम एरिया प्रोलीन के लिए होगा, बट इट इज एप्लीकेबल आउट ऑफ द स्टैंडर्ड अमीनो
एसिड्स। अगर स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स की बात करें तो वहां पर ये बात लागू होती है। यहाँ पर क्या है कि एक और अमीनो एसिड दे दिया गया। मोस्टली अमीनो एसिड्स में क्या होता है कि सी एल्फा कार्बन, इधर तरफ सी ओ एच। एक तरफ तो हम टेंशन फ्री होते हैं क्योंकि हाइड्रोजन होता है, जो कुछ भी हमें ध्यान देना पड़ता है वो उसकी आर चेन, क्योंकि वो एसिडिक हिंड्रेंस प्रोड्यूस करता है। दूसरी तरफ अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन एटम जो मिनिमम एसिडिक हिंड्रेंस प्रोड्यूस करेगा। अब क्या किया गया, अल्फा मिथाइल वैलिन के अंदर आर चेन में तो एक तो ब्रांच चेन है ही, ब्रांच वैलिन, इट इज अ स्ट्रक्चर लाइक दिस, प्लस यहां पर भी अल्फा पोजीशन की दूसरी साइड पर भी अल्फा पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप ऐड कर दिया गया। ऐसा करने पर अब स्टेरिक हिंड्रेंस इधर की तरफ वाली आर चेन भी करेगी और इधर की तरफ वाली आर चेन भी करेगी। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस द स्टेरिक हिंड्रेंस वुड बी इवन मोर एज कंपेयर टू दैट ऑफ प्रोलीन, because now at alpha carbon there is, you can see, R chain from both the sides. Getting this? फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया द phi and psi value of beta strands composed of D amino acids will mainly occupy in which quadrant? So in general अगर हमसे ये पूछा जाता कि अगर L अमीनो एसिड्स हैं, इफ देयर इज, ये हमारा फाई क्वाड्रेंट है, ये हमारा साई क्वाड्रेंट है, यहाँ पर प्लस वैल्यू होती है, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर वापस माइनस वैल्यू प्लस वैल्यू, दिस पॉइंट इज 0। अगर L अमीनो एसिड्स होते माय डियर फ्रेंड्स, तो हम जानते हैं बीटा स्ट्रैंड्स या बीटा शीट्स के लिए फाई की वैल्यू लगभग, मीन्स फाई ये यहाँ पर कहीं पर लाई करता है, means phi value would be around negative, that could be negative 120. Psi value could be around or it could be, let's say parallel beta sheet तो 115 and psi value would be 120, and if these are anti-parallel beta sheets then it would be 100 and you can say 135. This value could be 140, but both the values they are minus ones. But this is applicable when the amino acids they are in left, means amino acids they are L form. But in question it has been given that the amino acid they are in D form, and if amino acids they are in D form, then they will have a reverse phi and psi value. Their phi value is expected to be positive while psi value would be also positive, and if both they are true then where it will lie, sorry, okay, normally it is plus, it is plus, correction kar leta hu, so it lies over here. But now what will happen is that phi value would be around 115 while psi value will become minus 120 डिग्री, कुछ इस तरीके की वैल्यूज है वह हो जाएगी। तो जो वैल्यू प्लस वाली थी साई की वो माइनस हो जाएगी, फाई की वैल्यू जो माइनस थी वह प्लस हो जाएगी। इसका मतलब ये एक्स इसमें कहाँ पर लाई करेगा, तो इट विल लाई हियर। तो वी विल से दैट इट इज, पहली बात तो लोअर साइड में लाई करेगा और लोअर साइड में भी किधर की तरफ, लोअर राइट। सो आंसर वुड बी लोअर राइट, दैट इज ऑप्शन 4। इट इज ऑलमोस्ट लाइक अ सेम कंसेप्ट, जो कि अगर राइट हैंड अल्फा हेलिक्स यहाँ बनते हैं तो लेफ्ट हैंड अल्फा हेलिक्स यहाँ पर बनेंगे। सेम कंसेप्ट इज बीइंग अप्लाइड ओवर हियर, ओके, बिकॉज L form of amino acid and D form of amino acids they are mirror images of each other. The next question is means there is an amino acid alanine, multiple alanine they are there, and around 80 alanine they are there, and there is an acetyl CH3CHO group, means amino group is blocked by an acetyl group on this side, and some amide bond has been formed on this side, so that this free amino, alpha amino and alpha carboxyl group could be blocked. उन्होंने कहा कि ये स्ट्रक्चर कैसा बनाता है, अल्फा हेलिक्स बनाता है। तो अगर अल्फा हेलिक्स बनाता है तो फाई और साई की वैल्यू कैसी होगी, तो जो हमने पढ़ा उसके हिसाब से फाई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। अगर ये अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर फॉर्म करता है तो अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर के अंदर फाई की वैल्यू शुड बी अराउंड -57 एंड साई वैल्यू वुड बी अराउंड -47। कुछ इस तरीके की वैल्यूज एक्सपेक्टेड थी, लेकिन यहाँ पर कुछ इस तरीके की वैल्यू, दोनों की वैल्यू माइनस माइनस होनी चाहिए, तो माइनस प्लस पॉसिबल नहीं है, दो तरीके की वैल्यू पॉसिबल नहीं है। हालांकि यहाँ पर नहीं कहा गया है कि वेदर इट इज अ राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स और लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स, बट क्योंकि हम ये मानकर चल रहे हैं कि एलेनिन है वह राइट हैंडेड, एलेनिन की जो बात कर रहे हैं वह
या एलेनिन की जो हम बात कर रहे हैं दैट इज इन एल फॉर्म, तो उस कंडीशन में वैल्यू क्या होनी चाहिए इसकी माइनस, इसकी वैल्यू भी होनी चाहिए माइनस, तो माइनस माइनस वैल्यू ऑप्शन 1 में दे रखी है। लॉजिकली इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ एक इंफॉर्मेशन वो मिसिंग है, वो हमें ये दी होनी चाहिए कि दीज एलेनी दे आर ऑल आर एल एलेन, क्योंकि अगर सारे के सारे डी एलेनिन होते तो फिर 5 की वैल्यू आपके पास 5 की वैल्यू प्लस 60 होती है, साई की वैल्यू है वो माइनस, सॉरी वो भी प्लस 47। अगर एल अमीनो एसिड्स हैं तो दीज मस्ट बी आर वैल्यूज, पर अगर डी अमीनो एसिड्स होते तो 5 की वैल्यू कितनी होती प्लस 57 और साई की वैल्यू कितनी होती प्लस 47। सो 50% तो किसी तरीके से आंसर नहीं हो सकता, आइदर 100% वुड बी दिस वैल्यू और 100% वुड बी अ सेकंड टाइप ऑफ वैल्यू। क्लियर? देन मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट पेप्टाइड्स इन अ रामाचंद्रन प्लॉट। पहला स्टेटमेंट इसमें कहा गया है पेप्टाइड्स दैट आर unstructured will have all the backbone dihedral angle in a disallowed region. No, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। If one amino acid may have, these are amino acids which are forming which are unstructured. This may be in a non-permissive region. This is a permissive region. This may lie in a non-permissive. This may lie in a non-permissive. This may lie in a non-permissive. This may again lie in a permissive region. पर एक या दो अमीनो एसिड परमिसिव रीजन में उनकी फाई और साई वैल्यू लाई कर भी जाए तो उससे सेकेंडरी स्ट्रक्चर नहीं बनता। तो हमने पढ़ा था कि प्रॉक्सिमिटी में अमीनो एसिड्स की साई फाई वैल्यू भी परमिसिव होनी चाहिए, देन ओनली सम रेगुलर स्ट्रक्चर कुड बी फॉर्म, और हमें करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। सेकेंड स्टेटमेंट में कहा गया इट इज नॉट पॉसिबल टू कंक्लूड वेदर द टू पेप्टाइड्स adopt entirely helix और an entirely beta sheet conformation। नहीं, रामाचंद्रन प्लॉट से हम आसानी से पता कर सकते हैं कि वेदर अ प्रोटीन इज गोइंग टू फॉर्म अ alpha helix or a entire beta sheet depending upon their psi phi value. So this statement is also false. Third statement, the occurrence of beta turn conformation in peptide can be deduced. Yes, that is true. चाहे बीटा टर्न हो, 3 10 हेलिक्स हो, पाई हेलिक्स हो, अल्फा हेलिक्स हो, सभी तरीके के सेकेंडरी स्ट्रक्चर को हम रामाचंद्रन प्लॉट से पता कर सकते हैं। दिस ऑप्शन इज करेक्ट। द सीक्वेंस ऑफ पेप्टाइड कैन बी डिड्यूस। नहीं, रामाचंद्रन प्लॉट सीक्वेंस डिटर्मिनेशन का तरीका नहीं है। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। देन मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि एन अल्फा हेलिक्स in a peptide or a protein is characterized by hydrogen bond and characterized dihedral angle। ये तो बहुत सिंपल सा है कि अल्फा हेलिक्स की फाई और साई वैल्यूज किस तरीके की होती है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसी होती है। तो हमें पता है कि फाई वैल्यू है कहने के हिसाब एग्जैक्टली तो -57 और -47 हमने पढ़ा है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसी होती है n की n+4। इस तरीके का कोई आंसर होना चाहिए। सो हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन अमाइड ऑफ I रेसिड्यू एंड NH ऑफ एन I+4, ये बात तो सही है। डायहेड्रल एंगल इन रीजन ये माइनस दे रखा है और ये भी माइनस दे रखा है, दोनों माइनस माइनस दे रखा है। हालांकि वैल्यू में थोड़ा सा डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डेविएशन है, ऐसा होना नहीं चाहिए था, पर फिर भी -60 -50 होना चाहिए था, पर फिर भी इसमें थोड़ा सा ज़्यादा डेविएशन दे दिया। पर फिर और क्या इससे कोई बेटर ऑप्शन है? हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन एन अमाइड NH ऑफ I, नहीं, nth अमीनो एसिड है उसका C डबल बॉन्ड O हाइड्रोजन बॉन्ड करता है और N+4 का NH करता है, ये बात तो कंफर्म है। तो ये बात तो गलत हो गई। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन अमाइड CO ऑफ I एंड NH रेसिड्यू ऑफ I+4, डाइहेड्रल इन द रीजन ऑफ माइनस और प्लस तो पॉसिबल ही नहीं है, दोनों वैल्यू माइनस माइनस होनी चाहिए। हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द अमाइड CO ऑफ रेसिड्यू I एंड NH ऑफ I+3, नहीं, I+3 नहीं होगा, I+4 होना चाहिए, ये ऑप्शन भी बाहर चला गया। तो पीछे बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए आंसर फर्स्ट ही होगा, पर ध्यान रखें एक्चुअल जो फाई वैल्यू है दैट शुड बी अराउंड -57 एंड साई वैल्यू शुड बी अराउंड -47। लिटिल बिट डिविएशन इज अलाउड, बट यहाँ तो रिवर्स कर दिया है, यहाँ पर -60 होता है, यहाँ -50 होता तो फिर भी हम उसको काफ़ी हद तक एक्सेप्ट कर लेते, बट वी कांट डू एनीथिंग। क्वेश्चन वाज ऑल लाइक दिस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, इसको अगर आप एक बार ध्यान से देखें, क्वेश्चन में कहा गया है गिवन बिलो आर स्टेटमेंट रिलेटेड टू प्रोटीन स्ट्रक्चर। प्रोटीन स्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं। क्या स्टेटमेंट दे रखे हैं हम उनको एक एक कर पढ़ें। कि स्टेटमेंट में कहा गया है द डाइहेड्रल एंगल ऑफ अमीनो एसिड
एक्स इन एसिटाइल, वापस कोई अमीनो एसिड एक्स है, उसका अमीनो टर्मिनस को हमने एसिटाइल ग्रुप ऐड कर दिया ताकि ये ब्लॉक हो जाए, और इधर की तरफ हमने मिथाइल अमाइड कर दिया, यानी मिथाइल अमाइड, ताकि सी टर्मिनस भी ब्लॉक्ड हो जाए। ऐसा हमने कर दिया। ये अमीनो एसिड है जिसकी आर चेन है। यहाँ पर अब रोटेशन जो कुछ भी होगा उसे फाई कहा जाएगा, यहाँ पर जो भी रोटेशन होगा उसे हम साई कहेंगे। में कहा गया है कि अकर इन, और हमें क्या ढूंढना, पहले ये भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है, व्हाट वी हैव टू आइडेंटिफाई, वी हैव टू आइडेंटिफाई ऑल द करेक्ट स्टेटमेंट। तो पहला जो स्टेटमेंट दे रखा है, दैट द डाइहेड्रल एंगल of amino acid acetyl X and methyl amide in Raman plot occurs in very small but equal areas in left and right quadrant, यानी इनकी फाई एंड साई वैल्यू इधर भी लाई कर रही हो और इधर भी लाई कर रही हो, तो इट कैन बी कंक्लूड दैट X इज नॉट वन ऑफ द 20 अमीनो एसिड। यस, दिस कुड बी कंक्लूडेड बिकॉज जो स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स हैं उनकी जो फाई और साई का डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मली इस साइड में होता है। ऐसा नहीं होगा कि इधर भी होगा। इधर की तरफ तो मेनली डी फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड्स देखने को मिलते हैं, इधर की तरफ जनरली एल फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड्स की फाई साई वैल्यूज देखने को मिलती है। दोनों तरफ अगर देखने को मिल रहा है तो फिर हम कह सकते हैं, फिर हम बेसिकली कह सकते हैं उस कंडीशन के अंदर कि ये एक अमीनो एसिड 20 अमीनो एसिड्स में से नहीं है। देन नेक्स्ट स्टेटमेंट अगर इसका देखें तो नेक्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है कि the dihedral angle of 20 residue peptide, the dihedral angle of 20 residue peptide represented in Raman plot, it is possible to conclude that peptide does not have a proline. नहीं, इस तरीके से तो हम अंदाजा नहीं लगा सकते। ये स्टेटमेंट फिर भी काफी हद तक पॉसिबल नहीं। क्या कहा है, डाइहेड्रल ऑफ 20 अमीनो एसिड्स आर रिप्रेजेंट रामसन प्लॉट। रामसन प्लॉट में इस तरीके से फर्स्ट अमीनो एसिड की कोई साई फाई वैल्यू यहाँ पर है, सेकंड की साई फाई वैल्यू है, थर्ड की, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th, इस तरीके से साई फाई वैल्यूज है वह रखी हुई है। और इसके बेसिस पर हम ये कंक्लूड करना चाहते हैं कि इसमें प्रोलीन नहीं है। नहीं, प्रेडिक्ट नहीं कर सकते क्योंकि प्रोलीन की भी साई फाई वैल्यूज है वो काफी ज्यादा होती है, इतनी आसानी से प्रेडिक्शन नहीं किया जा सकता, इसलिए बी स्टेटमेंट तो हमारा फॉल्स हो गया। सी स्टेटमेंट कह रहा है टू प्रोटीन्स हैव अ सिमिलर फोल्ड इवन इफ दे डू नॉट शेयर सिग्निफिकेंट सिमिलरिटी इन देयर प्राइमरी स्ट्रक्चर। हाँ, दैट्स ट्रू। The different amino acids, they may have a similar psi-phi values and they can form a similar kind of protein fold. This statement is true to very large extent. D statement में कहा गया है, on denaturation of protein by urea, the interaction that would be disrupted are ionic bonds and van der Waals interactions, but not a disulfide bond. Yes, that's true. डीनेचुरेशन करने पर वीक नॉन कोवलेंट इंटरेक्शंस हैं वो डिस्टर्ब होते हैं, और यूरिया मेनली जो डिस्टर्ब करता है वो आयनिक बॉन्ड्स को करता है, वॉन डर वाल इंटरेक्शन को करता है, लेकिन वह डाइसल्फाइड बॉन्ड को नहीं करता। अगर डाइसल्फाइड बॉन्ड को तोड़ना होता तो हम यहाँ पर किसको इस्तेमाल करते, बीटा मरकैप्टो इथेनॉल को। सो डी स्टेटमेंट भी ट्रू है। तो करेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होने चाहिए, ए, सी एंड डी कॉम्बिनेशन हमारे करेक्ट होने चाहिए। देन मूविंग फर्दर, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है माय डियर फ्रेंड्स, द फॉलोइंग आर 4 स्टेटमेंट ऑन पेप्टाइड और प्रोटीन कन्फॉर्मेशन, और हमें एक वापस क्या पता करना है, करेक्ट कॉम्बिनेशंस हैं उन्हें पता करना है। पहला स्टेटमेंट इसमें कहा गया है कि ग्लाइसिन हैज लार्जेस्ट एरिया, ग्लाइसिन है दैट ऑक्युपाइज अ लार्जेस्ट एरिया ऑन अ रामचंद्रन प्लॉट ऑफ साई एंड फाई वैल्यू। यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके। B statement, a 20 residue peptide that is acetylated at N-terminus, obviously हम बार बार पढ़ रहे हैं कि N-terminus को हम acetylate करते हैं और C-terminus है उसको अमीडेट कर देते हैं, नहीं कोई अमीनो ग्रुप है वह लगा देते हैं। ठीक है, ये बात हम बाकी जगहों पर भी देख रहे हैं। फिर बीच में अमीनो एसिड 1, 2, 3, 4 इस तरीके से 20 अमीनो एसिड्स हैं, इस तरीके की बात की गई है। हैज़ अ फाई वैल्यू ऑफ -60 ± 5, psi value of -30 ± 5 for all residues, it could be concluded that conformation of peptide is helix, turn helix नहीं, it could be concluded that it is a helix, it cannot be। अब बाकी का turn और strand के बारे में नहीं कह सकते, turn के लिए phi psi वैल्यू अलग होती है और
जो स्ट्रैंड है यानी बीटा स्ट्रैंड है उसकी साई फाई वैल्यू अलग है। सिर्फ ये कंक्लूजन यहाँ पर लिया जा सकता है कि बेसिकली this psi-phi value suggest that कि it could be an alpha helix but it cannot be suggest that is a helix turn। यानी सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर के लिए तो अगर 3 तरीके के सेकेंडरी स्ट्रक्चर है 3 अलग अलग तरीके की psi-phi वैल्यूज होनी चाहिए। देन मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कहा गया है so next statement, the allowed value of psi-phi for an amino acid in a protein are not valid for short peptide। why not valid? even they are valid for a single amino acid। short peptide की तो बात ही छोड़ लें, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। डी स्टेटमेंट, a peptide which is acetylated at A1, ठीक है, एसिटाइल कर दिया, फिर अमीनो एसिड A1 है, फिर अमीनो एसिड A2 है और फिर अमीनो एसिड A3 मींस लेट्स से देयर आर 3 अमीनो एसिड्स A1, there is amino acid A2 and then there is a amino acid A3। A1 A4 are amino acids adopt a defined well turn A1 और उसके बाद एक और अमीनो एसिड भी है दैट इज A4, ये बीटा टर्न स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, A1 हमें पता है अमीनो एसिड 1 हाइड्रोजन बॉन्ड करता है अमीनो एसिड 4 के साथ, एक बीटा टर्न बनाते हैं, बीच में अमीनो एसिड 2 होता है, यहाँ पर अमीनो एसिड 3 होता है। So there is a formation of hydrogen bond between amino acid 1 and 4. The dihedral angle of amino acid 2 and 3, the dihedral angle of amino acid 2 and amino acid 3 defines the type of beta turn। yes, that statement is true। so correct combination is A and D, means answer is option 3, क्योंकि हमने बीटा टर्न टाइप 1 होगा, बीटा टर्न टाइप 2 होगा, 2 डैश होगा, 1 डैश होगा, ये सब इस बात पर डिपेंड करता है कि n+1 पोजीशन पर जो अमीनो एसिड है उसकी फाई साई वैल्यू क्या है और n+2 पोजीशन पर जो अमीनो एसिड है उसकी साई फाई वैल्यू क्या है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द एग्जैक्ट बैकबोन डाइहेड्रल एंगल इन अ प्रोटीन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय, यानी ये डायरेक्ट क्वेश्चन है कि हम डाइहेड्रल एंगल्स के बारे में पता कैसे करते हैं। तो डाइहेड्रल एंगल को पता करने का सिंपल सा तरीका है एक्सरे डिफ्रैक्शन। सो आंसर कुछ ऐसा ही होना चाहिए, ऑप्शन 4 में दे रखा है, दैट इज एनालिसिस ऑफ अ क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन ऑब्टेन्ड बाय एक्सरे डिफ्रैक्शन एट अ हायर रेजोल्यूशन। सो कोई प्रोटीन उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर हो उसका हम एक्सरे डिफ्रैक्शन कर साई और फाई वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। बाकी बातें भी लिखेगी कि estimating the number of protons that exchange deuterium on treating with protein with D2, इससे क्या पता चलता है, it gives you information about the secondary structure। ये secondary structure के बारे में information देता है। forming fibers of protein and analyzing the fiber diffraction pattern, इससे हमें fibrous strength और उसमें coiling के बारे में information पता चलेगी। deconvolution of its circular dichroism spectra obtained at different pH and temperature, तो इसमें जो secondary structures जो transitions हैं उनके बारे में हमें पता चलता है। then moving to next statement, question number 10 में कहा गया in a 30 residue peptide the dihedral phi and psi have been determined by one or another method when their values are examined in Ramanathan plot it is। तो psi phi value के बारे में क्या बात सही है। not possible for psi-phi values can to be distributed in helical as well as beta sheet region। नहीं हो सकती है, आप देखें, आप हमने तो पढ़ा था कि ग्लाइसिन तो 70% 75% एरिया के अंदर, यानी यहाँ पर भी उसकी psi-phi वैल्यू लाई करती है और यहाँ पर भी psi-phi वैल्यू लाई करती है, तो ये स्टेटमेंट तो हमारा फॉल्स हुआ क्योंकि इसमें नॉट की जगह पर क्या होना चाहिए, इट इज पॉसिबल। सेकेंड स्टेटमेंट कहा गया है पॉसिबल दैट phi psi values are all in helical region although circular dichroism spectral study indicate beta sheet conformation। नहीं, ये मिसमैच पॉसिबल नहीं है, इट इज यहाँ पर होना चाहिए नॉट पॉसिबल होना चाहिए, इसलिए ये आंसर गलत हो गया। अगर phi psi वैल्यू अल्फा हेलिकल रीजन में लाई कर रही है तो सर्कुलर डायक्रोरिज्म से भी हमें यही पता चलेगा कि उसमें स्ट्रक्चर कैसा है, हेलिकल है। देन थर्ड स्टेटमेंट possible to conclude that peptide is composed of entirely D amino acid। yes, this could be concluded because the D amino acid phi psi value would be almost mirror image of an L form of amino acid, that it could be easily concluded। for example, there is some peptide which is forming a left-hand alpha helix on a Ramanathan plot, what we will conclude, we will definitely conclude that this particular alpha helix which is left-handed is composed of D form of amino acid। statement is true।
फोर्थ स्टेटमेंट में कहा गया नॉट पॉसिबल टू कंक्लूड इफ द पेप्टाइड इज एंटायरली हेलिकल और एंटायरली बीटा शीट। नो, इट इज पॉसिबल। व्हाई नॉट पॉसिबल? इट इज पॉसिबल। तो ये भी फॉल्स है। देन मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फॉलोइंग आर द स्टेटमेंट ऑन बीटा टर्न्स। बीटा टर्न से कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। ऑल द 20 coded amino acids have an equal propensity to form a beta turn. No, some particular type of amino acid like proline, glycine, they are more seen in a beta turn. सबकी एक जैसी probability नहीं होती। प्रोलीन कैन नॉट अकर इन बीटा टर्न। नहीं, प्रोलीन तो बीटा टर्न में होता ही होता है, या ज्यादातर जगहों पर होता है, हमेशा तो नहीं, बट मोस्ट ऑफ टाइम एट n+1 पोजिशन यू विल फाइंड अ प्रोलीन। प्रोलीन ग्लाइसिन सीक्वेंस स्ट्रांगली फेवर्स बीटा टर्न। यस, दैट स्टेटमेंट इज ट्रू, क्योंकि हम जानते हैं ये nth अमीनो एसिड है, ये n+1 अमीनो एसिड है, यहाँ पर n+2 अमीनो एसिड है, और ये n+3 अमीनो एसिड, और ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड कर रहे हैं बीटा टर्न। यहाँ पर n+1 जगहों पर जनरली प्रोलीन होता है और n+2 वाली जगहों पर ग्लाइसिन होता है। तो ये स्टेटमेंट तो ट्रू है। डी स्टेटमेंट में कहा गया है इन एस्पार्जिन ग्लाइसिन टाइप ऑफ बीटा टर्न, यानी यहाँ पर एस्पार्जिन है और यहाँ पर ग्लाइसिन टाइप ऑफ बीटा टर्न है। aspargine can have a phi psi value positive. Yes, this is possible because there are variety of type of beta turns. तो बाकी दो को हमने और माइनस भी कर दिया, हमारे आंसर क्या बच गए? सी एंड डी, दे आर द करेक्ट कॉम्बिनेशंस। देन क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया इंडिकेट विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन स्ट्रक्चर इज करेक्ट। न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन स्ट्रक्चर के बारे में क्या बात सही है? पहला स्टेटमेंट कहा गया है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन द बेसिस इन मेजर एंड माइनर ग्रुप ऑफ द डीएनए आर एब्सेंट। व्हाई दे आर एब्सेंट? दे आर प्रेजेंट। हमें करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन बेसिस इन अ मेजर एंड माइनर ग्रुप ऑफ डीएनए इज प्रेजेंट। ओके, बोथ यूरेसिल थायमिन हैव मिथाइल ग्रुप बट हैड डिफरेंट पोजीशन। नहीं, यूरेसिल के ऊपर मिथाइल ग्रुप नहीं होता, सिर्फ थायमिन हैज अ मिथाइल ग्रुप। The backbone dihedral angle of alpha helix and beta sheets are very similar. No, they are totally different. alpha helix के अंदर phi की वैल्यू है वह नेगेटिव, psi की वैल्यू भी नेगेटिव होती है, जबकि बीटा शीट में phi की वैल्यू नेगेटिव और psi की वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो ये बात भी गलत हो गई। फोर्थ स्टेटमेंट, अब बीटा टर्न इज फॉर्म्ड बाय 4 अमीनो एसिड। ये तो हम बार बार देख रहे हैं बीटा टर्न के अंदर कि हमारे पास कोई nth अमीनो एसिड है, n+1 अमीनो एसिड है, n+2 अमीनो एसिड और n+3 अमीनो एसिड। ये 4 अमीनो एसिड्स, ये 4 अमीनो एसिड्स डिसाइडिंग फैक्टर। these 4 अमीनो एसिड्स दे आर द डिसाइडिंग फैक्टर, और n+3 के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। द टाइप ऑफ बीटा टर्न इज डिटरमाइंड बाय डाइहेड्रल एंगल ऑफ सेकंड एंड थर्ड अमीनो एसिड। यस, this is फर्स्ट अमीनो एसिड, दिस इज सेकंड अमीनो एसिड, दिस इज थर्ड अमीनो एसिड, दिस इज फोर्थ अमीनो एसिड। तो इसकी फाई और साई वैल्यू कैसी है? इसकी फाई और साई वैल्यू कैसी है? दीज आर द डिसाइडिंग फैक्टर्स दैट वेदर इट इज अ टाइप 1, टाइप 2, किस तरीके का ये रिवर्स टर्न है। देन moving to next question, that is which of the following statement on a protein conformation is not true? क्या बात सही नहीं है? पहला, डाइहेड्रल एंगल ऑफ साइड चेन इन अमीनो एसिड्स आर डिपिक्टेड। नहीं, साइड चेन का कोई रोल नहीं है। साइड चेन इज अ काइस, काई का रोल नहीं है। मेजर जो डाइहेड्रल एंगल रिप्रेजेंट करते हो मेन चेन के फाई और साई को रिप्रेजेंट किया जाता है। बाकी की स्टेटमेंट देखें, इन IR स्पेक्ट्रोस्कोपी कैन बी यूज टू रिड्यूस हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन अ पेप्टाइड। यस, दैट वी विल स्टडी लेटर ऑन टेक्निक्स कि IR स्पेक्ट्रोस्कोपी से हाइड्रोजन बॉन्डिंग को पता किया जा सकता है। 3-dimensional structure of protein composed of 100 amino acid can be obtained by NMR. Yes, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी में आगे चलकर पढ़ेंगे टेक्निक्स के अंदर, तब हम देखेंगे इट इज मोर सुटेबल फॉर ग्लोबुलर प्रोटीन, सॉल्युबल प्रोटीन लेसर देन 100 amino acids. Global protein have alpha helical and beta sheet component. Yes, global protein they have alpha helix and beta sheets. They are the major component क्योंकि वो close packaging करते हैं। Then next जो statement कहा गया फ्रेंड्स कि which of the following statement on protein conformation detailed below is incorrect. इस बार हमें incorrect statement बताना है। पहला, L amino acids can occur in type 1 beta turn, 1 प्राइम बीटा टर्न वेयर द साई फाई वैल्यूज आर ऑल पॉजिटिव। यस, क्योंकि हमें पता है कि n+1 अमीनो एसिड की यहाँ पर फाई वैल्यू, साई वैल्यू लगभग आप देखेंगे +60, +120, n+2 की वैल्यू भी लगभग ये +90, 0 ऑल पॉसिबल, ये
सही बात है, हमें सही नहीं ढूंढना, हमें ओके इनकरेक्ट ढूंढना है। A peptide rich in proline is unlikely to adopt an alpha helical, yes, क्योंकि proline is a alpha helix breaker. Proline residues have high propensity to occur in beta turn, yes, ये तो बार बार देख रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन बार बार आ रहा है कि proline है वह बीटा टर्न में है, फेवर कैसा है। The dihedral angle of phi psi of an amino acid in unfolded protein are exclusively positive, नहीं, unfolded protein के अंदर पॉजिटिव भी हो सकती है phi वैल्यू, और पॉजिटिव तरीके की भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, दे कैन बी इवन नेगेटिव। सो दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट, और हमें फॉल्स स्टेटमेंट ही आइडेंटिफाई करना था। फॉल्स स्टेटमेंट इसमें ऑप्शन 4th है। सो दीज वर द क्वेश्चन ऑफ रामाचंद्रन प्लॉट। अब हम डिस्कस करेंगे इन दिस पर्टिकुलर सेशन, वी आर गोइंग टू नाउ डिस्कस द क्वेश्चंस which has been asked in NET examination related to a protein structure. So let's see quickly the questions which has been asked on protein structure in CSIR NET examination. The first question which has been asked in CSIR NET examination is direct, straightforward. कि अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ पर होती है, तो बहुत सिंपल सा है, C डबल बॉन्ड O ऑफ एन nth अमीनो एसिड, मेन चेन का ही, और NH ग्रुप ऑफ N+4th अमीनो एसिड, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलेगी। C डबल बॉन्ड O ऑफ nth अमीनो एसिड, इट कैरीज अ हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ एन N+4, या इसको I कह रहे हैं तो इसको हम I+4 भी कह सकते हैं। तो आंसर हमारा क्या हो गया, C, पहली बात तो N+3 पॉसिबल नहीं है, N+4 होना चाहिए, C double bond O of N and NH of N+4. Third option is appropriate, it is more correct. Then moving to next question is, consider a 51 residue protein containing only 100 amino acids about which rotation can occur. ये लेविथल जो हमने पैराडॉक्स है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि 51 रेसिड्यू का प्रोटीन है जिसमें 100 बॉन्ड्स हैं जहां पर रोटेशन अलाउड है, और हर जगह पर कितने ओरिएंटेशन पॉसिबल है, 3 ओरिएंटेशन पॉसिबल है। तो कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनेंगे, तो हम डायरेक्ट पढ़ा था 3 × 100 ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस कॉम्बिनेशंस दे वुड बी फॉर्म्ड, 3⁻100, दैट इज डायरेक्ट क्वेश्चन, दैट आंसर 1 हो जाएगा। ये हमने लेविथल पैराडॉक्स में देखा था। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अनफेवरेबल प्रोटीन फोल्डिंग, विच इज फॉलोइंग इज अनफेवरेबल फॉर प्रोटीन फोल्डिंग। तो प्रोटीन फोल्डिंग के लिए अनफेवरेबल क्या है, कन्फॉर्मेशनल एंट्रोपी, क्योंकि जब प्रोटीन जब फोल्ड होता है तो एंट्रोपी है वह डिक्रीज होती है, और एंट्रोपी का डिक्रीज होना फेवरेबल नहीं है। हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस दे आर फेवरेबल, वॉन डेर वाल इंटरेक्शन इज फेवरेबल, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज फेवरेबल, व्हाट इज नॉट फेवरेबल, तो कन्फॉर्मेशनल एंट्रोपी इज नॉट फेवरेबल, बिकॉज हम जानते हैं कि प्रोटीन जब फोल्ड होता है तब एंथैल्पी है वह भी नेगेटिव चेंज आता है, और एंट्रोपी में नेगेटिव चेंज आता है। एंथैल्पी में नेगेटिव चेंज इट इज यस फेवरेबल, बट एंट्रोपी में नेगेटिव चेंज इट इज नॉट favorable. Okay, got this? Then moving to next question, that is, which of the following is most appropriate statement regarding the folded protein, protein folded है उसके लिए क्या statement सही है। पहला statement, charged amino acid side chains are always buried. No, always तो biological system में कभी कुछ नहीं होता। वैसे होता क्या है, चार्ज्ड अमीनो एसिड्स दे आर सेल्डम बरीड, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज जनरली पेरिफेरल पर रहती है, ज्यादातर नॉन पोलर रेसिड्यूज है वह कोर की तरफ होती है, इसलिए पहला तो गलत हो गया। बी स्टेटमेंट का गया, चार्ज्ड अमीनो एसिड साइड चेन्स आर सेल्डम बरीड, हाँ ये बात सही है, चार्ज्ड जो साइड चेन वाले अमीनो एसिड्स हैं वो पेरिफेरी की तरफ रखे जाते हैं। नॉन पोलर अमीनो एसिड साइड चेन्स आर सेल्डम बरीड, ये तो फॉल्स हो गया, दे आर ऑलवेज और वी कैन से मोस्टली दे आर बरीड, एक्सेप्शनल बात होगी अगर वो पेरिफेरी पर देखने को मिले। टायरोसिन रेसिड्यूज आर ऑलवेज बरीड, नो दिस इज फॉल्स। पहली बात तो टायरोसिन पोलर है तो फिर वह बरीड कैसे होगा, इट शुड बी एट द पेरिफेरी,
और हम तो जानते हैं कई सारे एंजाइम जैसे टायरोसिन काइनेज है, वो टायरोसिन के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप जोड़ते हैं। अगर टायरोसिन छुपा हुआ होता है उसकी आर चेन, तो फिर फॉस्फेट ग्रुप कैसे ऐड होता है? सो दिस इज नॉट क्वाइट पॉसिबल। ओके, सो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सेकेंड। देन मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, that is a protein has 30% alanine. Okay, 30% alanine. If all the alanine are replaced by glycine, तो क्या होगा? तो ग्लाइसिन के अंदर क्योंकि 5 साई की वैल्यू और ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, और बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होने की वजह से अब एक कोई पर्टिकुलर तरीके के सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। जो प्रोटीन है वह कंपेरेटिवली लेसर स्ट्रक्चर्ड होगा। ऐसा ही कुछ आंसर होगा। हेलिकल कंटेंट विल इंक्रीज, नहीं, ग्लाइसिन डिक्रीज करता है। बीटा शीट कंटेंट विल डिक्रीज, इंक्रीज, सॉरी, नो, इट विल आल्सो डिक्रीज, क्योंकि ज्यादा ग्लाइसिन हुआ। पॉलीग्लाइसिन तो इवन टाइप 2 प्रोलीन की तरह स्ट्रक्चर बनवाएगा। देयर विल बी नो चेंज, देयर वुड बी अ चेंज इन कन्फॉर्मेशन। एंड व्हाट वाज द चेंज इन कन्फॉर्मेशन? यू विल फाइंड अ लेस स्ट्रक्चर्ड प्रोटीन एज कंपेयर टू अ पेरेंट प्रोटीन। फोर्थ ऑप्शन है इसमें करेक्ट है। देन जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है माय डियर फ्रेंड, अ प्रोटीन इज कंपोज्ड ऑफ ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, एलेनिन, ग्लाइसिन, 1 आर्जिनिन, 2 सिस्टीन एंड लिंक्ड बाय। तो प्रोटीन में क्या है? एक ल्यूसीन है, एक आइसोल्यूसीन है, एक एलेनिन है, एक ग्लाइसिन है। सीक्वेंस की हम बात नहीं करें, लाइसिन, एलेनिन, एलेनिन, ग्लाइसिन, फिर कोई प्रोलीन है, 1 लाइसिन है, 1 आर्जिनिन है, एंड देयर आर एटलीस्ट 2 सिस्टीन एंड दे आर लिंक्ड बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड। ऐसा कुछ प्रोटीन। कन्फॉर्मेशन एनालिसिस इंडिकेट द प्रोटीन हैज एलिमेंट ऑफ अल्फा हेलिक्स एंड बीटा शीट। मतलब कुछ अमीनो एसिड की अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर जैसा बना सकते हैं, कुछ बीटा शीट। इसकी वजह पर हम क्या कह सकते हैं? प्रोटीन में अमीनो एसिड कितने हैं? 1 2 3 4 5 9 अमीनो एसिड की बेसिकली ये पेप्टाइड है। क्या 9 अमीनो एसिड की पेप्टाइड प्रोटीन की तरह काम कर सकती है? नहीं। प्रोटीन की तरह काम करने के लिए कम से कम 100 अमीनो एसिड्स चाहिए, ताकि कोई सेकेंडरी स्ट्रक्चर, फिर टर्शियरी स्ट्रक्चर, फिर कोई एक्टिव साइट बन सके। तो क्या बात सही है? द प्रोटीन इज मोस्ट लाइकली अ प्रोटीज, नहीं, एंजाइम की तरह काम कर नहीं सकता। नॉट एन एंजाइम, यस, ये कंफर्म है। लाइपेज, नहीं, एंजाइम नहीं हो सकता। फ्लिपेज, नहीं, ट्रांसपोर्टर नहीं हो सकता। सो इतने 9 अमीनो एसिड की पेप्टाइड, इट कैन नॉट फंक्शन एज अ कैटलिस्ट। देन क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया कि फॉस्फोराइलेशन ऑफ एन एडीपी टू एटीपी अकर थ्रू एन एनर्जी मेटाबॉलिज्म compromising an oxidative phosphorylation or substrate level phosphorylation or photophosphorylation. ATP can also be formed by ADP through an enzyme adenylate kinase action of adenylate kinase. Crystal structure determination of adenylate kinase shows that C-terminal region has the following sequence. कैसी है? वेलेनिन। तो इसमें से हम देखेंगे, पहले हम नॉन पोलर अमीनो एसिड को हाईलाइट कर दें। ये अमीनो एसिड अगर हम हाईलाइट करें तो व्हाट यू फाइंड इज दिस इज non-polar, then non-polar amino acid, then again non-polar amino acid, and in between there are polar amino acid. These are polar amino acid, polar amino acid. Again there are polar amino acid. Again there are polar amino acid. इस बेसिस पर जो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर बनेगा वो किस तरीके का बनेगा? काइनेज के बारे में ये बता रहा है। इसके बारे में क्या कि अल्फा हेलिक्स विच इज नॉट एम्पीपैथिक, नहीं, इट इज एन एम्पीपैथिक हेलिक्स। ल्यूसीन जिपर हेलिक्स, ल्यूसीन जिपर में तो ल्यूसीन आना चाहिए, ल्यूसीन तो कहीं पे दिखाई नहीं दे रहा है। बीटा हेलिक्स नाम की कोई चीज होती नहीं है। तो आंसर हमारा क्या हो गया? ऑप्शन सेकंड। देन मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर मेड टू प्रोटीन स्ट्रक्चर। और हमें क्या पता करना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है वो हमें पता करना है। पहला स्टेटमेंट में कहा गया द हाइड्रोजन बॉन्डिंग पैटर्न बिटवीन द सी डबल बॉन्ड ओ एंड एनएच ग्रुप्स आर NN+3 इन अल्फा हेलिक्स। नहीं, अल्फा हेलिक्स में NN+3 नहीं होता है, N+4 होता है। NN+3 4 इंटर हेलिक्स, नहीं, ये 3 होता है। NN+5, यस, अल्फा हेलिक्स। ये एक बात सही है, इसलिए ए तो गलत हो गया, ए फॉल्स हो गया। बी स्टेटमेंट in a beta term there are 10 atoms between hydrogen bonding donor and acceptor. Yes, this statement is true, क्योंकि n की हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसके साथ हो रही है N+3 के साथ।
तो ऑब्वियसली वहां पर फिर कितने आइटम आएंगे, 10 आइटम्स आएंगे, क्योंकि हमने जब सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स पढ़ रहे तब हमने पहले भी देखा था कि जब n+4 के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो कितने 3.6 13 हेलिक्स भी कहते हैं, 13 एटम्स आते हैं। n+5 के बीच में अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो कितने एटम्स आ जाएंगे, तो एक 3 एटम्स यानी एक अमीनो एसिड बढ़ा और 3 एटम्स और बढ़ जाएंगे, 16 एटम्स आ जाएंगे, यानी 4.216 कहते हैं इसलिए। n अगर n+2 के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है तो फिर वहां पर कितने एटम्स आ जाएंगे, देयर वुड बी 7 एटम्स, तो 10 एटम्स होते हैं। ये बात सही है, बी स्टेटमेंट इज ट्रू। तो पीछे तो आंसर ही एक बच गया, बी एंड डी। इन गामा टर्न देर आर 6 एटम्स बिटवीन हाइड्रोजन डोनर एंड एक्सेप्टर। नहीं, गामा टर्न के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसी होती है, n की n+2 के साथ, और अगर n की n+2 के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई तो उस कंडीशन में कितने एटम्स होंगे, 7 एटम्स। यहाँ पे लिखा हुआ है 6 एटम्स, लिए ये फॉल्स हो गया। डी स्टेटमेंट कहा गया है पैरेलल शीट्स have evenly spaced hydrogen bond which bridge the strands at an angle. बिल्कुल, this statement is true. Parallel sheets have evenly spaced hydrogen bonds which bridge the strands at an angle. 180 डिग्री नहीं, 150 डिग्री के आसपास हाइड्रोजन बॉन्ड एंगल होता है। ये बात भी सही है, बी और डी करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है आउट ऑफ द फॉलोइंग मेंशन्ड बिलो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट। कौन से करेक्ट स्टेटमेंट, देखते हैं एक एक कर स्टेटमेंट के बारे में। चलें, पहला स्टेटमेंट, एल थ्रियोनिन एंड एल एलोथ्रियोनिन इंटरेक्ट आइडेंटिकली विथ अ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। नहीं, ये बात सही नहीं है, क्योंकि एल का मतलब लाइट ऑप्टिकल रोटेशन से लेना देना नहीं है। दे में interact differently with a plane porous light. L-threonine could be levorotatory, तो L-allothreonine could be a dextrorotatory. ये डाइस्टीरियोसोमर्स हैं और डाइस्टीरियोसोमर्स एक तरीके से एक्ट करें लाइट के साथ, ऐसा कुछ जरूरी नहीं। वॉन डर वॉल इंटरेक्शंस दे आर ऑलवेज अट्रैक्टिव, नो, दे वॉन डर वॉल इंटरेक्शंस could be attractive in nature until they come at van der Waal contact distance. But if they come closer than van der Waal contact distance, then now the van der Waal interactions become repulsive. Third statement, C statement में कहा गया polyproline second helix is not stabilized by intermolecular hydrogen bonds. That is true. चाहे पॉलीप्रोलिन 1 हो, चाहे कोलाजन हो, चाहे पॉलीप्रोलिन 2 हो, दे आर नॉट स्टेबलाइज्ड बाय अ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। डी स्टेटमेंट में कहा गया है कि द फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन इज एस्योर्ड विद एन ओवरऑल पॉजिटिव चेंज। अगर पॉजिटिव चेंज होता फ्री एनर्जी में तो फिर प्रोटीन फोल्डिंग ही नहीं होती। प्रोटीन फोल्डिंग के दौरान फ्री एनर्जी चेंज कैसा आता है, नेगेटिव आता है, तभी तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस। अगर पॉजिटिव चेंज आता तो फिर ये पॉसिबल नहीं हो पाता। तो हमने पढ़ा प्रोटीन जब फोल्ड होता है तो डेल्टा जी में नेगेटिव चेंज आता है, एंथैल्पी में भी नेगेटिव चेंज आता है और एंट्रोपी में भी नेगेटिव चेंज आता है। ई स्टेटमेंट कहा गया है लाइसिन एसिटाइलेशन ऑफ स्टोन इज एसोसिएटेड विद लूजनिंग ऑफ एन स्टोन कॉम्प्लेक्स फ्रॉम द डीएनए। यस, दैट्स ट्रू, क्योंकि लाइसिन के ऊपर जनरली पॉजिटिव चार्ज होता है, अमीनो एसिड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, इसलिए वो डीएनए के साथ स्ट्रांगली इंटरेक्ट करता है, क्योंकि डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। लेकिन लाइसिन रेसिड्यू के अमीनो ग्रुप पर एस्टल ग्रुप जोड़ दिया गया, उसकी आर चेन पे जो अमीनो ग्रुप जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज आता है, उस अमीनो ग्रुप के ऊपर अगर एसिटाइल ग्रुप C+O जोड़ दिया गया उस लाइसिन के ऊपर, तो ऐसा होने पर जो पॉजिटिव चार्ज पहले था वो पॉजिटिव चार्ज लॉस्ट हो जाएगा। और पॉजिटिव चार्ज अगर लॉस्ट हो गया तो इफ पॉजिटिव चार्ज गेट लॉस्ट व्हाट विल हैपन, नाउ पॉजिटिव चार्ज इज लॉस्ट, लेसर इंटरैक्शन विथ डीएनए के साथ अब इंटरैक्शन कंपैरेटिवली कम होगा। ठीक है, देन मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज फॉलोइंग आर स्टेटमेंट रिलेटेड टू पेप्टाइड और प्रोटीन कन्फॉर्मेशन। पहला स्टेटमेंट इसमें कहा गया है द सर्कुलर डाई, पहली बात तो हमें आइडेंटिफाई क्या करना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट को, तो पहले पढ़ते हैं। The circular dichroism spectra of collagen and a protein in alpha helical conformation will be identical. No, collagen helix का अलग
फाइसाई वैल्यू होगा, उसका CD स्पेक्ट्रा भी एकदम अलग होगा। द अलाउड रीजन ऑफ अ डाइहेड्रल एंगल फाइसाई इन अ ग्लाइसिन स्पेंस लार्ज एरिया इन अ रामाचंद्रन प्लॉट, बिल्कुल सही बात है यहाँ तक। तो दिस कैन बी ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड बाय सब्स्टिट्यूटिंग द 2 हाइड्रोजन विद अ मिथाइल ग्रुप। यस, ऑब्वियसली ग्लाइसिन के 2 हाइड्रोजन की जगह पर मिथाइल ग्रुप दोनों तरफ लगा दें तो ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। प्रोलीन हैज हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस इन बीटा टर्न, ये बात भी सही है, बार बार हम ये तरह क्वेश्चन देख रहे हैं कि प्रोलीन है वह बीटा टर्न में देखने को मिलता है। अगला स्टेटमेंट में कहा गया है कि इन अ बीटा हेयरपिन स्ट्रक्चर द डाइहेड्रल एंगल्स फाई एंड साई ऑफ अमीनो एसिड्स फ्लैंकिंग द बीटा रीजन विल बी -60 -30 रिस्पेक्टिवली। यस, ये बिल्कुल सही बात है, डी भी हमारा नहीं। इन अ बीटा हेयरपिन द डाइहेड्रल ऑफ फाई साई ऑफ फ्लैंकिंग की बात नहीं है, दिस इज द फाई साई वैल्यू ऑफ n+1 अमीनो एसिड, n+1 अमीनो एसिड की फाई साई वैल्यू है। फ्लैंकिंग का मतलब तो कि इसके इधर वाले अमीनो एसिड की बात करें, नहीं, इन अमीनो एसिड की बात नहीं है, ये n+1 अमीनो एसिड की फाई साई वैल्यू होती है, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। फॉल्स स्टेटमेंट हो गया ए एंड डी। ए एंड डी अगर फॉल्स है तो हमारा आंसर हो गया थर्ड। देन मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अब हम बात कर रहे हैं। A researcher has developed a program to evaluate the stability of protein by substituting an each amino acid at time by other 19 amino acids. For a protein, a researcher has observed the following changes in stability upon substitution of amino acids: loops, helix, sheets, protein core and surface. Substitution के ऐसा हमने एक्सपेरिमेंट पढ़ा भी था कि सब्सटीट्यूशन करने पर कई काफ़ी हद तक 50% तक इवन अमीनो एसिड सब्सटीट्यूशन करने के बाद भी प्रोटीन्स हैं वो एडेप्टेबल होते हैं, स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रख सकते हैं। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट से क्या कंक्लूजन निकलता है वो हम देखें कि स्टेबिलिटी की हम बात कर रहे हैं, हेलिक्स की स्टेबिलिटी पे सब्सटीट्यूशन की वजह से देयर इज नो अफेक्ट ऑन हेलिक्स। स्टेबिलिटी पर क्या फर्क पड़ा, तो सब्सटीट्यूशन की वजह से आप देख रहे हैं जैसा इधर है ऐसा कहता है इधर है, देयर इज नो इफेक्ट ऑन हेलिक्स। लूप्स, तो सब्सटीट्यूशन से स्टेबिलिटी ऑफ लूप्स डिक्रीज्ड, यानी लूप्स के अंदर अगर सब्सटीट्यूशन करते हैं तो डिक्रीज हो जाती है। बीटा शीट्स या सिंपली शीट लिखा हुआ तो स्टेबिलिटी ऑफ शीट्स, शीट्स की स्टेबिलिटी है वह बढ़ जाती है। फिर इधर से क्या पता चल रहा है, सरफेस पर करें तो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, कोर पर अगर सब्सटीट्यूशन करें तो स्टेबिलिटी घट जाती है। तो हम यहाँ पर ऐसा ही लिख देते हैं, लूप्स के अंदर क्या हो रहा था, तो लूप्स के अंदर डिक्रीज हो रही थी और हेलिक्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा था। अब हमें क्या पूछा है कि क्या करेक्ट है, लूप्स आर मोर टॉलरेंट, नो, लूप्स आर लेसर टॉलरेंट, लूप के अंदर डिक्रीज हो रहा है। शीट्स आर मोर टॉलरेंट, यस, शीट्स आर मोर टॉलरेंट क्योंकि स्टेबिलिटी बढ़ रही है। कोर इज लेस टॉलरेंट, यस, कोर इज लेस टॉलरेंट। हेलिक्स आर लेस टॉलरेंट, नहीं, हेलिक्स पर नो इफेक्ट, इसलिए ये फॉल्स हो गया। सरफेस इज मोर टॉलरेंट, यस, सरफेस इज मोर टॉलरेंट। तो दो के कॉम्बिनेशन है, ए एंड सी नहीं, पॉसिबल नहीं है, सी एंड डी नॉट पॉसिबल, बी एंड ई यस दिस इज पॉसिबल, सर और फिर ए एंड बी नॉट पॉसिबल। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन थर्ड। सो आंसर वुड बी ऑप्शन थर्ड। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है कि थर्मोडायनेमिक्स ऑफ प्रोटीन फोल्डिंग इज डिफेक्टेड इन अ फ्री एनर्जी फनल बिलो। तो ये तो बेसिकली लार्ज एंट्रोपी है, हाई एंट्रोपी स्टेट है, ओके। और वैसे हमें क्या पता करना है, इनमें से पता करना है कि नेटिव स्ट्रक्चर कौन सा। तो लास्ट में डी इज अ नेटिव स्ट्रक्चर जो कि फोल्ड हो चुका है, ए है वह अनफोल्डेड स्ट्रक्चर, दिस इज अनफोल्डेड स्ट्रक्चर एंड अनफोल्डेड स्ट्रक्चर विल हैव अ हाईएस्ट एंट्रोपी। फिर बी पॉइंट क्या हो जाएगा, मोल्टन ग्लोब्यूल। फिर सी पॉइंट क्या हो गया, इंटरमीडिएट हो जाएगा कुछ ना कुछ, दिस मे बी अ इंटरमीडिएट स्टेज। तो अनफोल्डेड प्रोटीन, मोल्टन ग्लोब्यूल, इंटरमीडिएट एंड नेटिव स्ट्रक्चर। तो आंसर हमारा कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा कि ए इज
A must be the structure with highest entropy, B point must be molten globule, C must be discrete folded intermediate, and D must be native structure. तो ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन है? ए का सेकंड, बी थर्ड, सी फोर्थ. आंसर इज ऑप्शन 1. Moving to these were the questions of basically protein folding. Now we are discussing questions related with the or we can say applied questions related with the proteins. So let's see the questions that has been asked from the applied part of a protein biochemistry in CSIR NET examination. Question number 1, a researcher investigated the set of conditions for protein with an isoelectric point of 6.5 and also bind a protein जिसका आइसोट एक तो क्या बात दे रखी है, PI दे रखा है 6.5 and binds to calcium. ये दो इंफॉर्मेशन दे रखी है, binds to calcium. These two information is given. The protein was subjected to 4 independent treatment. पहला treatment pH should be 6, pH is 6.4 and pH 6.4 is near to 6.5, means here there would be an isoelectric precipitation, and if there is an isoelectric precipitation the amount of protein in supernatant should be lesser. So this could be either this or this could be like this. इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है जहाँ पर solubility कम हो. 10% glycerol. 10% glycerol, what glycerol do is glycerol carry out an hydration. Hydration means it will increase the solubility. So this could be effect of glycerol due to a hydration. 10 मिलीमोलर कैल्शियम क्लोराइड. कैल्शियम क्लोराइड कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन है. कैल्शियम क्लोराइड तो सॉल्युबिलिटी को और ज्यादा रेज करेगा, इवन ग्लिस्ट्रॉल से भी ज्यादा रेज करेगा. तो अब 2 की जगह ये 3 होना चाहिए, क्योंकि कैल्शियम है वह सॉल्युबिलिटी को और ज्यादा इंक्रीज करेगा एज कंपेयर टू अ ग्लिस्ट्रॉल. फोर्थ इज 40% अमोनियम सल्फेट. इस कंडीशन में प्रोटीन बहुत ज्यादा प्रेसिपिटेट हो जाएगा. तो इनमें से अब दोनों का डायग्राम बहुत एक जैसा बताया, तो 1 और 4 में से कुछ भी हो सकता है, ये 1 और 4 में से कुछ भी हो सकता है. तो कॉम्बिनेशन में हमारा क्या है, ए इज अमोनियम सल्फेट, हो ही नहीं सकता. ए इज कैल्शियम क्लोराइड, बी इज ग्लिस्ट्रॉल, नहीं ग्लिस्ट्रॉल हाइड्रेशन कराता है. ए कुड बी 6.4, नहीं इतनी सॉल्युबिलिटी को बढ़ाता नहीं, सॉल्युबिलिटी घटाता. ए कुड बी कैल्शियम क्लोराइड, यस. बी कुड बी 6.4 pH, yes 6.4, 1 वाला बिल्कुल सही बात है. C could be glycerol, yes C could be glycerol, and D could be ammonium sulfate, yes. Correct combination would be option 4. Then moving to next question. इस क्वेश्चन में कहा गया है glycerol is added to a protein solution to stabilize the preparation by. तो glycerol कराता क्या है? तो glycerol बेसिकली क्या कराता है? तो डायरेक्ट क्वेश्चन है. glycerol carry out a preferential हाइड्रेशन ऑफ अ प्रोटीन, क्योंकि ग्लिसरॉल के पास इस तरीके से OH ग्रुप खूब सारे होते हैं, और इस जो बेसिकली OH ग्रुप क्या कराएंगे, ये वाटर के साथ इंटरेक्ट कराएंगे. दे वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइड्रेशन, और हाइड्रेशन कराने का मतलब है कि प्रोटीन की सॉल्युबिलिटी है उसको इंक्रीज कराएंगे. सो दे कैरी आउट अ प्रेफरेंशियल हाइड्रेशन ऑफ प्रोटीन्स. देन मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. बेसिकली क्रोमेटोग्राफी से बेस्ड क्वेश्चन है. A mixture of 2 protein was subjected to following cation exchange chromatography. This is cation exchange chromatography. तो यहाँ पर चार्ज के बेसिस पर सेपरेशन हुआ कैटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में, चार्ज या आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पर. साइज एक्सक्लूजन में साइज के बेसिस पर, रिवर्स फेज में हाइड्रोफोबिसिटी के बेसिस में. तो कैटायन एक्सचेंजर बीड का मतलब itself is a bead is negatively charged, that's why it will interact with a positively charged protein. तो सबसे पहले कौन आएगा, तो हम कहेंगे इनमें से this must be a with a low PI and this protein must be of high PI. यहाँ पर साइज के हिसाब से पहले लार्जर साइज वाला आएगा, फिर स्मॉल साइज वाला आएगा. रिवर्स फेस एसीटोनाइट्राइल सॉल्वेंट को इस्तेमाल किया तो इनिशियली कंपैरेटिवली पोलर आएगा, और
लास्ट में निकल कर आएगा नॉन पोलर। तो इसके बेसिस पर कुछ कॉम्बिनेशन हमारे निकलने चाहिए। ए इज लार्ज, ए इज लार्ज नहीं, ए इज स्मॉल, तो ये तो बात ही गलत हो गई। बी इज मोर एनायनिक, लो पीआई मतलब लो पीआई मीन्स नेगेटिव, हाई पीआई मीन्स कंपेरेटिवली पॉजिटिव, ऐसा हम कह सकते हैं। ए बी इज मोर एनायनिक नहीं, बी इज कैटायनिक, ये बात भी गलत हो गई। ए इज मोर हाइड्रोफोबिक, यस ए इज मोर हाइड्रोफोबिक। बी इज स्मॉलर, बी and smaller than B, yes B it is, A is smaller than B, that is also true, third statement सही है। A is more cationic नहीं, A is more anionic, ये बात भी गलत है। so correct statement क्या हो गया, ऑप्शन थर्ड। then moving to next question, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में कहा गया है in isoelectric focusing experiments proteins are settled on basis of their, आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग नाम से पता चल रहा है कि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पर, तो बेसिकली इट डिपेंड्स अपॉन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, सो इट डिपेंड ऑन रिलेटिव कंटेंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज रेसिड्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि एनालिसिस ऑफ अ होमोटेट्रामरिक प्रोटीन, कोई होमोटेट्रामरिक प्रोटीन है 4 सबनेट का बना हुआ एंड अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, there is some double stranded, let's say this is a double stranded DNA incubated under standard buffer on native gel reveals that they migrate true to their physical state, मतलब जहां तक टेट्रामेरिक प्रोटीन है वो जाना चाहिए और जहां तक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जाना चाहिए वहां तक वह माइग्रेट हुए। फॉलोइंग हाइपोथेसिस वर मेड ऑफ इफेक्ट ऑफ एडिंग हाई सॉल्ट टू द इंक्यूबेशन मिक्स, यानी सॉल्ट की कंसंट्रेशन को बढ़ा दें तो क्या होगा। तो सॉल्ट की कंसंट्रेशन बढ़ाने पर डीएनए की स्टेबिलिटी तो बढ़ेगी, ये तो बात कंफर्म है, स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, तो डीएनए का बैंड तो उसी जगह पर आएगा जितना जैसा पहले था। पर सॉल्ट की कंसंट्रेशन प्रोटीन के लिए बढ़ाने का मतलब है कि उसकी स्टेबिलिटी, प्रोटीन स्टेबिलिटी में इंक्रीज और इट में डिक्रीज डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ इंटरेक्शन। अगर यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्सेस थे तो सब यूनिट्स अलग हो जाएगी, और अगर यहाँ पर हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन से सब यूनिट्स जुड़ी हुई थी तो और ज़्यादा टाइटली आकर एसोसिएट होना शुरू हो जाएगी। तो क्या कॉम्बिनेशन सही है, पहला द प्रोटीन वुड माइग्रेट एज अ होमोटेट्रामर एंड डीएनए इन अ डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म, yes that could be true. The protein would migrate as a monomer but DNA, this is also true क्योंकि प्रोटीन है वह टेट्रामर की तरफ भी मूव कर सकता है और मोनोमर की तरफ भी मूव कर सकता है, पर डीएनए है वह डबल स्ट्रैंडेड ही होना चाहिए, डीएनए मस्ट बी डबल स्ट्रैंडेड। डीएनए इन सिंगल स्ट्रैंडेड नॉट पॉसिबल, डीएनए इज सिंगल स्ट्रैंडेड नॉट पॉसिबल। द प्रोटीन, तो आंसर क्या हो गया हमारा, ए एंड डी। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है a small fraction of clear cellular lysate was run on isoelectric focusing gel to purify a particular protein which showed a number of sharp bands corresponding to different pi values। isoelectric focusing की और isoelectric focusing करने पर हमारे पास कई सारे ऐसे sharp bands दिखाई दिए, तो pH इधर उधर 2 हो सकता है, इधर उधर pH 12 हो सकता है। द प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट है आइसोलेट्रिक पॉइंट, जो जिस प्रोटीन में हमें इंटरेस्ट है उसका आइसोलेट्रिक पॉइंट 5.2 है। ओके, यहाँ से हमने जेल को कट किया और अलग कर दिया, तो ये जेल का ये रीजन अलग कर दिया जिसके अंदर हमारा इंपॉर्टेंट प्रोटीन है, और इसको फिर एसडीएस पेज किया। एसडीएस पेज करने पर इसी प्रोटीन को हमने यहाँ पर लोड कर दिया एसडीएस पेज में, और एसडीएस पेज को के ऊपर लोड करने पर अब हमारे पास 3 डिफरेंट बैंड्स आए। आना तो एक बैंड चाहिए था, पर एक बैंड की बजाय एसडीएस करने पर 3 डिफरेंट बैंड्स आए। ऐसा क्या इन्फेरेंस नहीं निकाला जा सकता, क्या गलत है, हमें ये पता करना है। पहला स्टेटमेंट,
सेवरल डिफरेंट प्रोटीन्स हैव अ पीआई मे बी प्रेजेंट एज सिंगल बैंड। हाँ, ये हो सकता है कि यहाँ पर प्रोटीन ए, बी और सी तीनों का आइसोटोपिक पॉइंट एक था, इसलिए वो एक जगह पर बैंड बना रहे थे, पर एसडीएस पेज में क्योंकि उनकी साइज अलग थी इसलिए दे आर फॉर्मिंग अ डिफरेंट बैंड्स। दिस मे बी ट्रू। SDS page showed three distinct bands which may represent molecular mass of three different protein. Yes, that may represent the three different protein. Yes, that may be true. The protein of interest may be composed of three subunits. Yes, this may be true क्योंकि यहाँ पर जब आइसोलेटेड फोकसिंग करते हैं तो नेटिव चार्ज पर करते हैं, सब यूनिट सारी सारी साथ में होती है, लेकिन आपने जैसे ही एसडीएस पेज किया सब यूनिट्स डिसोशिएट हो गई होगी। दिस में भी अल्फा सब यूनिट, दिस में भी बीटा सब यूनिट, दिस में भी गामा सब यूनिट। दिस इज ऑल्सो क्वाइट पॉसिबल। The isoelectric focusing gel showed a distinct band correspond to pi 5.2, which is pi of protein of interest. The protein is composed of single subunit. नहीं, ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि सिंगल सबयूनिट का बना हुआ होता, प्योर होता तो फिर तीन बैंड नहीं आते। So this fourth generalization or statement is false. Next question, 7th में कहा गया कि ribonuclease A consists of 124 amino acid residues. RNase A is cleaved with some enzyme subtolene, and this subtolene enzyme it cut between N, you can say that this is RNase, subtolene यहाँ पर कहीं पर आकर कट लगाता है between an amino acid 20 and 21, यहाँ पर कट लगा देता है। यहाँ पर कोई एलेनिन है और यहाँ पर कोई सीरीन है। अब हमारे पास दो फ्रेगमेंट बनने चाहिए, एक ये स्मॉल 20 अमीनो एसिड का और एक और फ्रेगमेंट ये बनना चाहिए जो पीछे बच गया है लगभग 104 अमीनो एसिड का। दैट इज एक्सपेक्टेड आफ्टर अ क्लीवेज, दिस इज एक्सपेक्टेड। However, gel filtration chromatography of subtolene treated action mixtures a yield of single peak that elutes at the same position of full length RNase। तो जेल परमिशन क्रोमेटोग्राफी करते हैं तो वो इसका मतलब हो सकता है कि ये अभी भी दो आपस में इंटरेक्ट कर रहे थे, इसलिए दे आर फॉर्मिंग अ सिंगल बैंड। Under identical chromatography condition as above, similar size fragment 20-104 are seen to separate well। थोड़ा सा हम क्रोमेटोग्राफी कंडीशंस को करें तो हमारे पास तीन बैंड्स भी आ रहे हैं, उसका मतलब आपके पास एक ऐसा फॉर्म भी दिखाई दे सकती है जहां पर ये अभी भी नॉन कोवलेंटली जुड़े हुए हैं, ये 124 का बैंड हो गया, और एक ऐसा बैंड भी आ सकता है जिसमें से क्लीवेज होकर अलग हो गया, ये 104 का बैंड हो गया, और एक ये वाला फ्रैगमेंट जो क्लीव होकर अलग हुआ वह एक 20 का अलग बैंड भी दे सकता है। Which of the following is most likely explanation for this observation? क्या सबसे करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? तो देखें क्या है। The smaller fragment is found by vanishingly small amount and cannot be detected. It is being detected. Why it is not being detected? You can see that it is being detected. The smaller 22 residue fragment is unstable and degraded. No, it is not being degraded. It is being observed. The two fragments are non-covalently bound despite the cleavage. Yes, they are non-covalently bound, and that's why despite the cleavage you are able to see a band of 124 amino acid. The two fragments are linked by disulfide bond. नहीं, अगर disulfide bond से जुड़े हुए होते तो फिर salt treatment देने पर आपके पास ये दो अलग अलग बैंड 104 और 24 20 के नहीं बनते, 104 और 20 के बन रहे हैं। इसका मतलब डेफिनेट है कि यहां पर डाइसल्फाइड बॉन्ड नहीं है। देन मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस आर मेड ऑन 30 रेसिड्यू पॉलीपेप्टाइड। कुछ कंक्लूजन्स हैं, ऑब्जर्वेशंस हैं। अनऑर्डर्ड स्ट्रक्चर इज ऑब्जर्व्ड इन वाटर but a helical conformation is observed in a medium of low dielectric constant, means there is some protein which is forming an unordered structure in water but a helical structure in a low dielectric constant value। पहला स्टेटमेंट ये। The peptide is resistant to degradation by protease. Protease cannot cleave this, protease को कट नहीं कर पा रहा है। Red blood cells are lysed by this peptide, यानी आरबीसी के ऊपर ये एक पेप लाइस यानी मेम्ब्रेन में पोर फॉर्मेशन जैसा कुछ काम कर रहा है। बीटा mercaptanol has no effect on peptide structure, यानी that it means no disulfide bonds are there.
Which of the following statement can be correctly attributed to above observations? The peptide is entirely composed of D amino acid and is amphipathic. Yes, that's true. D amino acid है इसलिए प्रोटीज का कोई इफेक्ट नहीं डाल रहा है. एम्फीपैथिक है इसलिए मेम्ब्रेन पर जाकर पोर का फॉर्मेशन कर रहा है. सो करेक्ट आंसर है इस ऑप्शन 1. द पेप्टाइड इज कंपोज्ड ऑफ एल अमीनो एसिड. तो फिर प्रोटीज को कट कर देते. द पेप्टाइड इज रिच इन डाइसल्फाइड बॉन्ड. नहीं, बीटा मर्फेनॉल से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. द पेप्टाइड इज एंटायरली कंपोज्ड ऑफ एल एरोमेटिक अमीनो एसिड. अगर एरोमेटिक अमीनो एसिड से भी बना हुआ होता तो भी प्रोटीज को क्लीव करते. देन क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है a multimeric protein which run on SDS shows a two band of 40 and 20. However, when the protein was run on native gel, it shows a 120 kilodalton band. तो इसके बेसिस पर क्या कंक्लूजन निकाला जा सकता है? तो इसके बेसिस पर कई सारे कंक्लूजन निकल सकते हैं क्योंकि इन्फॉर्मेशन काफ़ी कम दे रखी है. पर फिर भी कम से कम एक कॉम्बिनेशन तो ये बन सकता है कि एक 40 का सब यूनिट ज़रूर है और एक 20 का सब यूनिट ज़रूर है. फिर ये दोनों मिलकर 60 हुआ तो 120 कैसे होता है? तो ट्राइमर तो होने से रहा कि मिनिमम आपके पास एक 40 और एक 20 तो चाहिए. ठीक है, तभी ये 160 होगा. सो हेट्रो ट्राइमर पॉसिबल नहीं है, होमो पॉसिबल नहीं है, हेट्रो नहीं है. हेट्रो डाइमर, डाइमर तो दोनों होंगे तो 60 का ही हुआ, तो डाइमर भी नहीं पॉसिबल है. तो डाइमर और ट्राइमर में तो 120 हो ही नहीं रहा. ट्राइमर भी अगर ले लेते हो 40 20 और 40 भी ले लेते हो तो ये कितना हुआ? 100 हुआ. 40 40 80 प्लस 20 100 हुआ. हमें 120 करना है. तो आंसर हमारा क्या होगा? Out of the given choices, it would be a heterotetramer that is composed of 4 subunits, where the 2 subunits are of 20 and there are 2 subunits of 40. क्वेश्चन नंबर 10 बेसिकली ये थोड़ा सा इम्यूनो का कंसेप्ट है कि पैप्सिन कहाँ पर क्लीव करता है, पपेइन कहाँ पर क्लीव करता है. तो एंटीबॉडी तो एंटीबॉडी पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा. इस तरीके का एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर होता है. यहाँ पर डाइसल्फाइड बॉन्ड यहाँ पर कहीं पर कट लगाने का काम करता है इस जगह पर. दिस इज द क्लीवेज साइट ऑफ द पैप्सिन. और पैप्सिन कट करेगा तो आगे आप पढ़ेंगे इम्यूनो के अंदर. पैप्सिन कट करने पर हमारे पास एक FAB2 फ्रैगमेंट जो लगभग 100 किलो डेल्टन के आसपास होगा वह फॉर्म होगा. और FC फ्रैगमेंट जो पूरा पूरा क्लीव हो जाएगा छोटे छोटे टुकड़ों में. पहले तो 50 किलो डाल्टन का होगा लेकिन धीरे धीरे वो ब्रेक डाउन हो जाएगा. और उसके कॉन्ट्रास्ट अगर हम बात करें, वापस ये एंटीबॉडी है, डाइसल्फाइड बॉन्ड की लोकेशन है. अगर हम पपाइन का ट्रीटमेंट दे तो पपाइन इस जगह पर कट लगाता है और पपाइन इस जगह पर कट लगाएगा. तो अब हमारे पास क्या होगा? 2 FAB fragments बनेंगे. You will get 2 FAB fragments and each of around 50 kb, and you will get 1 FC fragment of 50 kb नहीं 50 kilo dalton and 1 FC of 50 kilo dalton. और अगर आप सिर्फ बीटा मर्केप्टोनोल का ट्रीटमेंट देंगे तो व्हाट यू विल ऑब्जर्व, लेट्स से दिस इज एन एंटीबॉडी. अगर आप बीटा मर्केप्टो इथेनॉल का ट्रीटमेंट देते हैं तो ये डाइसल्फाइड बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे. और डाइसल्फाइड बॉन्ड अगर ब्रेक हो गए तो अब हमारे पास एक लाइट चेन का बैंड आएगा दैट वुड बी ऑफ 25 किलो डेल्टन. और एक हैवी चेन का बैंड आएगा दैट वुड बी अप्रोक्सीमेटली अराउंड 50 किलो डेल्टन. सो दिस इज द लाइट चेन एंड जो बाकी की बड़ी वाली चेन है दैट इज द हैवी चेन. ओके, वी गेट अ हैवी चेन एंड लाइट चेन. अब ये हमें इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए और ये इंफॉर्मेशन कब पता होगी? जब आप इम्यूनो को आगे डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है, अब इस इंफॉर्मेशन को ध्यान में रखते हुए हम आगे बात करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि
ये तो कंट्रोल है जो सब में कॉमन होगा, यानी बैंड इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट यू आर गेटिंग इज अराउंड 220 किलो डाल्टन हीमोग्लोबिन जी। यहाँ पर एक 100 का और हैवी चेंज, एक 100 का बैंड बन रहा है और एक लगभग 50 से कम। तो ये तो बेसिकली आपके पास मोस्ट प्रोबेबली एक इसका ट्रीटमेंट होना चाहिए। ए मस्ट बी अ ट्रीटमेंट ऑफ पेप्सिन। दिस मस्ट बी एन FAB2 फ्रैगमेंट, डायमर की तरह काम कर रहा है, और ये एफसी फ्रैगमेंट का बैंड होना चाहिए। बी के अंदर आपके पास दोनों ही 50-50 के बैंड बन रहे हैं, तो इसका मतलब ये क्या होना चाहिए, मोस्ट प्रोबेबली ये क्या होना चाहिए, पपाइन का ट्रीटमेंट होना चाहिए, जिसके अंदर ये वाला बैंड इसके आसपास आ रहा है वो FC वाला हो गया, और उससे थोड़ा और हायर तो वह FAB वाला बैंड हो सकता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक बेसिकली 50 का बैंड आ रहा है और एक 25 का आ रहा है, मतलब ये आपकी लाइट चेन होनी चाहिए और ये हैवी चेन होनी चाहिए। ये किसका ट्रीटमेंट हो सकता है, बीटा मरकैप्ट। ये ट्रीटमेंट बीटा मरकैप्टो इथेनॉल का हो सकता है। फोर्थ केस में क्या है, सिर्फ एक ही बैंड है और वह भी लगभग 50 किलो डेल्टन के आसपास, और ये हो सकता है कि हमने वापस 50 किलो डेल्टन का एग्जैक्टली बेसिकली FAB रीजन होना चाहिए, तो FAB रीजन पपाइन वाला हो सकता है, और पपाइन में भी हमने क्या किया है, एंटी ईडियो टाइप, वो हम आगे पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। एंटी ईडियो टाइप का मतलब सिर्फ जो वेरिएबल रीजन है उसके अगेंस्ट ही जाकर बाइंडिंग हो, तो ये हमारा आंसर हो सकता, यानी यहाँ पर ही जाकर ब्लॉटिंग होगी, ये वाला बैंड दिखाई नहीं देगा। सो सबके बेसिस पर हम क्या कह सकते हैं, आंसर क्या है 1। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ प्रोटीन डिटरमाइंड बाय जेल फिल्ट्रेशन इज 120 किलो डाल्टन when its mass is determined by SDS page without beta methanol it is 60 किलो डाल्टन। इसका मतलब प्रोबेबली 60-60 के 2 रहे होंगे प्रोबेबली, क्योंकि अभी हमने बीटा मरकैप्टोइथेनॉल का इस्तेमाल नहीं किया है। तो क्या करेक्ट आंसर हो सकता है, प्रोटीन इज अ डाइमर इन विच टू आइडेंटिकल चेन्स आर क्रॉस लिंक्ड बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड। नहीं, ऐसा हम नहीं कह सकते क्योंकि हमने बीटा मरकैप्टोनॉल का ट्रीटमेंट नहीं दिया है, इसलिए हम डाइसल्फाइड बॉन्ड है या नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन उसके बारे में पता नहीं कर सकते। प्रोटीन इज अ मोनोमर, नहीं। प्रोटीन इज मोस्ट लाइकली टू बी कंपोज ऑफ टू सबनेट्स हैविंग एन आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर मास। हाँ, मोस्ट लाइकली, 100% तो नहीं, मोस्ट लाइकली ऐसा हो सकता है 60-60 की दो सबनेट हो जो नॉन कोवलेंटली या कोवलेंटली जुड़ी हुई हो। प्रोटीन इज अ मोनोमर, नहीं, ये बात तो गलती हो गई। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कहा गया है कि 4 अमीनो एसिड म्यूटेंट्स A to D ऑफ अ प्रोटीन दे आर बीइंग गिवन। सो यहां पर क्या गया, वाइल्ड टाइप प्रोटीन इस तरीके का बैंड देता है। ए में कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूशन किया गया जिससे प्रोटीन की अमाउंट कम हो गई, बी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, यानी बी के ऊपर हमने कुछ इस तरीके का सब्स्टिट्यूशन किया, एक अमीनो एसिड के फिर दूसरा अमीनो एसिड कुछ इस तरीके का लेकर आए कि प्रोटीन की फंक्शनिंग पर नेग्लिजिबल फर्क है। सी और डी के अंदर तो पूरा प्रोटीन ही गायब हो गया, यानी यहाँ पर हमने कुछ ऐसा अमीनो एसिड का रिप्लेसमेंट किया जो कि एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टी वाला था। या तो हमने ग्लाइसिन की जगह प्रोलीन लेकर आ गए, एक सबसे कम स्टेरिक हिंड्रेंस करता है, एक सबसे ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस करता है, या एक नॉन पोलर अमीनो एसिड था उसकी पोलर लेकर आ गए, या कहीं पर एसिडिक अमीनो एसिड था उसकी जगह पर बेसिक अमीनो एसिड लेकर आ गए, तो सबसे ज्यादा प्रोटीन पर फर्क पड़ेगा। अगर हम नॉन पोलर की जगह नॉन पोलर अल्कोहलिक OH ग्रुप सीरीन की जगह थ्रियोनिन लेकर आए, एस्पार्टिक एसिड की जगह ग्लूटामिक एसिड लेकर आए, तो फर्क बहुत कम पड़ेगा। The 4 single mutation upon sequencing were found be valine to alanine, glycine to proline, alanine to क्या क्या दे रखे हैं, valine to alanine, तो क्या होगा, नो चेंज होना चाहिए हमारे हिसाब से। ग्लाइसिन टू प्रोलीन, ग्लाइसिन टू प्रोलीन लार्ज चेंज, प्रोटीन में डिसअपियर। एलेनिन टू एस्पार्टिक एसिड लार्ज चेंज, क्योंकि एक नॉन पोलर है और दूसरा पोलर है। आइसोल्यूसिन टू ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन टू ल्यूसिन स्मॉल चेंज।
या नो चेंज, ऐसे स्मॉल और नो चेंज, because both the amino acids they are of similar property. Which of the following statement is correct? B is due to valine to alanine. Yes, there is a no change. That could be true. C is due to glycine to proline. Yes, C is due to glycine to proline because totally absent. तो पहला स्टेटमेंट ही सही हो गया. बी स्टेटमेंट. B is due to glycine to proline. नहीं, पॉसिबल ही नहीं है. D is due to isoleucine to leucine. No, it is not possible. C is due to valine to alanine. No, it is not possible. तो आंसर तो पीछे एक ही बचा. That is the option 1. क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है a protein undergoes a post translational modification in excrement. To identify the nature of modification, the following excrement results were obtained. क्या क्या रिजल्ट्स हैं एक बार देखें. Protein moved more slowly in SDS page, means some group has been added. Group has been added. As molecular weight increased. कैसे पता चला? क्योंकि मोबिलिटी है वह अफेक्ट हुई. तो फॉस्फोराइलेशन, ग्लाइकोसिलेशन, यूरिन, एडीपी, इनमें से कुछ भी हो सकता है क्योंकि सभी के अंदर मोबिलिटी है वह कम होगी. Isolatory focusing showed that there was no change in PI, means no acidic or basic group has been added or न्यूट्रलाइज्ड. न तो कोई एसिडिक ग्रुप ऐड किया गया है, न ही किसी एसिडिक ग्रुप को न्यूट्रलाइज किया गया है. सो फॉस्फोराइलेशन हमारा आंसर नहीं हो सकता क्योंकि वो तो नेगेटिव चार्ज वाला है. एडीपी राइबोसाइलेशन भी नहीं हो सकता है क्योंकि उस पर -2 चार्ज होता है, इसके ऊपर भी -2 चार्ज होता है. मास स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस शो दैट द मॉडिफिकेशन वाज ऑन अ सीरीन. तो यूबिक्विटाइजेशन भी नहीं हो सकता क्योंकि यूबिक्विटाइजेशन मेनली कहां पर होता है? लाइसिन के ऊपर. तो पीछे एक ही हुआ क्योंकि हम जानते हैं ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन बेसिकली कहां पर होता है? सीरीन के ऊपर. तो आंसर हो गया ऑप्शन सेकंड. नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया यू हैव आइसोलेटेड अ स्प्लीन सेल एंड प्यूरिफाइड your desired enzyme from spleen cell extracted by sequence step involving ammonium sulfate fractionation gel chromatography. You found an increase in specific activity of enzyme in a purified fraction compared to a cell free extract. ठीक है, ऑब्वियसली आप सॉल्ट प्रेसिपिटेशन और जेल परमिशन करेंगे तो जरूर स्पेसिफिक एक्टिविटी है वह बढ़ेगी. अभी आज ही हम भी डिस्कस किया हमने. इसमें क्या क्या स्टेटमेंट सही है? पहला, सेल फ्री एक्सट्रैक्ट कंटेन इनहिबिटर फाउंड इन एंजाइम. यस, दैट मे बी ए ट्रू क्योंकि अगर इनहिबिटर हटा तो बेसिकली स्पेसिफिक एक्टिविटी भी बढ़ेगी और टोटल एक्टिविटी भी बढ़ेगी. स्ट्रक्चर ऑफ एन एंजाइम वाज मॉडिफाइड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अ purification. No, structure cannot be modified. The structure of enzyme cannot be modified. This is not. Purification step gradually remove the inhibitor. Yes, that may be a true. The final fraction contain considered enzyme preparation. Yes, that is also true. So correct statement is A, C and D. Answer is option second. किसी भी प्रोटीन प्यूरिफिकेशन स्टेप में अगर स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया तो फिर उस प्यूरिफाइड एंजाइम या प्रोटीन का कोई सेंस नहीं बनता. वापस ही प्यूरिफिकेशन टेबल से क्वेश्चन है. आप देख रहे हैं टोटल प्रोटीन की अमाउंट घट रही है, टोटल एक्टिविटी भी घट रही है. स्पेसिफिक एक्टिविटी हम यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं. तो स्पेसिफिक एक्टिविटी कितनी होगी? तो स्पेसिफिक एक्टिविटी को यहाँ पर हम कहेंगे कि 40 से 40 कट कर दिया हमने. यहाँ पर स्पेसिफिक एक्टिविटी आ गई 200. यहाँ पर 30 से 30 कट कर दिया 6 5 5 6 30. यहाँ पर स्पेसिफिक एक्टिविटी हो गई 600. 20 से 20 कट गया. यहाँ पर स्पेसिफिक एक्टिविटी हो गई 4000. 0 से 0 कट गया. यहाँ पर 5 1 सा 5 5 150. ये हो गई हमारी 15,000 स्पेसिफिक एक्टिविटी. 45 को इसमें कट कर देते हैं तो लगभग 45 को 45 675 में डिवाइड कर लें तो 45 1 सा 45 हो गया. पीछे आपके पास बच गया 2 1 that is 2 2 2 5 और
225, तो 4 5 ज़ा 20, तो वापस हमारे पास लगभग 225 आ गया, 5 5 ज़ा 25, 2 तो यहाँ पर भी 15,000 रही। अब क्वेश्चन में क्या पूछा था, मोस्ट इफेक्टिव प्यूरिफिकेशन स्टेप इज, अच्छा सबसे इफेक्टिव कौन सी है, तो इफेक्टिव जहाँ पर सबसे इंक्रीज सबसे ज़्यादा हुआ, यहाँ पर फायदा इधर से इधर की तरफ बात करें तो 3 टाइम्स का बेनिफिट हुआ, इधर से इधर की तरफ करें तो हमारे पास कितना फ़ायदा रहा, 6 से 4,000, 6 3 ज़ा 18, लगभग 8 6 ज़ा 48, 7 6 ज़ा 40, इन लगभग 6.5 टाइम्स का फ़ायदा हुआ। इस स्टेप में बात करें तो 4,000 से 15,000 हुआ, मीन्स 4 3 ज़ा 12, 4 लगभग 3.75 टाइम फ़ायदा हुआ, और यहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ, नो फायदा बेनिफिट। तो किस स्टेप में सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ, तो हम कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा स्टेप में किस फ़ायदा हुआ, इस स्टेप पर जब हमने सॉल्ट प्रेसिपिटेशन से आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी पर आए, तो आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में सबसे ज़्यादा फायदा देखने को मिला, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी प्लस स्टेप थर्ड, दैट इज अ मैक्सिमम बेनिफिट, अगर हमने कैलकुलेशन सही की हो तो। वापस एक बार चेक कर लेते हैं, 30 से 30 कट गया, सॉरी यहाँ पर 6,000 है, यहाँ पर 2,000 है, हमने कैलकुलेशन में गड़बड़ करें तो थर्ड स्टेप नहीं होगी, फिर सारी चीज़ें ही बदल जाएगी। 2,000 से 6,000 मीन्स 3 टाइम्स बेनिफिट, 6,000 से 2 कट गए तो हमारे पास 8,000 डिवाइड बाई 2 4,000, तो फिर यहाँ पर क्या हुआ, कुल मिलाकर आपको डिवाइड करना और डिवाइड कर कर आपको चेक करना है, और 5 को 3 एक बार वापस, ओके लेट्स क्रॉस चेक द आंसर, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 400 divided by 2, 200 is correct, 1 2 3, 1 2 3, 3,000 divided by 5, 600, that is also true, okay, 1 2 1 2, 8,000 divided by 4, obviously this step in ion exchange chromatography there has been maximum benefit, so answer would be option third, okay, the most effective step is this, here कितना बेनिफिट हुआ स्टेप पर भी देख लें, 4 से यहाँ पर 600 से 4,000 मीन्स बेनिफिट इज मैक्सिमम। देन मूविंग टू नेक्स्ट स्टेटमेंट, now my dear friend moving to the questions which has been asked from the enzymes, so let's quickly see the questions CSR नेट में एंजाइम से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको एक बार एनालाइज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है एंजाइम्स एक्सेलरेट द रिएक्शन बाय व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजी, तो आंसर इज वेरी सिंपल, बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, so they decrease the energy required to attain a transition state, and the energy which is required to attain the transition state is referred to as activation energy. Enzymes help to lower the activation energy of reaction by basically binding only with a binding with a substrate, so forming a weak interaction with a substrate. So as we have seen that when enzyme it interact with the substrate, there are multiple weak interaction, and these multiple weak interactions they provide an energy which lowers the activation energy. Question number 3 में कहा गया है from the following statement pick up the combination which is incorrect. Incorrect statement क्या है वो हमें पता करना है। enzymes enhance reaction by 2 to 10, no they can 10⁴ to even 10⁷ times बढ़ा सकते हैं, इसलिए ये बात तो गलत है। The activation energy for reaction is lowered by enzyme, बिल्कुल सही बात है। The intermediate between enzyme and substrate are the interaction between enzyme and substrate are hydrogen bonding, hydrophobic, ionic, बिल्कुल सही बात है। Substrate concentration does not affect the rate of enzyme catalyzed reaction, it affect, so false, so A and D are false statement because substrate के साथ साथ तो ऐसा ट्रेंड देखा था हमने substrate की concentration और velocity में। Then moving to next question, ये तो मैच करना है। कोएंजाइम ए किसका कैरियर है, तो कोएंजाइम ए एसाइल ग्रुप का कैरियर है, नहीं तो फोर्थ हो गया। फ्लेविन एडेनिन न्यूक्लियोटाइड इनमें से किसको ट्रांसफर करता है, किस ग्रुप को, तो हाइड्रोजन एटम हो गया, FAD FADH2 में कन्वर्ट होता है।
पैराडॉक्सिल फॉस्फेट अमीनो ग्रुप का ट्रांसफर करता है, थियामीन पायरोफॉस्फेट टीपीपी एल्डिहाइड ग्रुप को ट्रांसफर कर सकता है। तो ऐसा हमारा आंसर क्या हो गया, 4 3 2 एंड 1। क्वेश्चन फिफ्थ में कहा गया सम कोएंजाइम्स, वापस में करना है कौन सा कोएंजाइम किसको ट्रांसफर करता है। तो कोएंजाइम ए किसको ट्रांसफर करता है, एसाइल ग्रुप को। ये हमारा आंसर हो गया सेकंड। इतना ही पता हो तो हमारा आंसर हो गया सेकंड वाला। पर फिर भी फ्लेविन एडेनिन न्यूक्लियोटाइड किसको ट्रांसफर करता है, हाइड्रोजन एटम को, या हम कह सकते हैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को, ऐसा भी हो सकता है। पैराडॉक्सिल फॉस्फेट अमीनो ग्रुप, पैराडॉक्सिल फॉस्फेट पीएलपी अमीनो ग्रुप यहाँ पर दे रखा है, यस अमीनो ग्रुप दे रखा है। एनएडी हाइड्रोडाइन को ट्रांसफर करता है। आंसर हमारा हो गया सेकंड। क्वेश्चन नंबर 6, ये भी बहुत डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। A researcher has studied resting enzyme that leaves only one specific base pair, 10 base pair per site. तो ऐसी साइट आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/4 The probability would be that such sequence you will get almost in 2,56,000 में एक बार आएगी। 50,000 में कितनी बार आएगी, क्या वो सीक्वेंस आएगी, नहीं, 50,000 वो सीक्वेंस देखने को नहीं मिलेगी। तो पहला आंसर नो। क्या ये एंजाइम यूजफुल होगा, नहीं यूजफुल नहीं होगा 50,000 डीएनए को कट करने के लिए, क्योंकि जो साइट जिस पर एक कट लगाता है उसके आने की प्रोबेबिलिटी लगभग 2,56,000 में एक बार होगी, तो 50,000 में तो आएगी नहीं। फिर यहाँ पर कहा गया रेस्टिंग एंडोन्यूक्लियस स्लो एंजाइम होते हैं, 1/सेकंड उनका बेसिकली टर्नओवर नंबर होता है। सपोज रेस्टिंग एंडोन्यूक्लियस को फास्टर कर दिया गया, टर्नओवर नंबर 10^6 कर दिया गया, तो क्या फास्ट एंजाइम होस्ट के लिए बेनिफिशियल होंगे, नहीं, ये बेनिफिशियल नहीं होंगे। इसका आंसर भी नो, क्योंकि इतना ज़्यादा फास्ट करने का मतलब क्या है कि दे विल इवन अटैक द होस्ट डीएनए इटसेल्फ, इसलिए स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट, Michaelis and Menton derive their equation using which of the following assumption? Rate limiting step in a reaction is a breakdown of ES complex to product and free enzyme. Yes, that is true, क्योंकि हम जानते हैं enzyme plus substrate complex, ES complex which come to E plus P. This is called as K2 and this is the rate limiting step. K1 and minus K1 are fast. ये तो fast है. So first statement ही सही है. Question number 8. Following our statement on enzyme kinetics, choose the correct statement. पहला, sufficiently high concentration of substrate cannot completely relieve competitive inhibition. नहीं, competitive inhibition है, वह relieve किया जा सकता है. Competitive inhibition can be reversed by increasing substrate concentration. Second, sufficiently high concentration of substrate can relieve non-competitive inhibition. No, it can relieve competitive inhibition. Allosteric nature of an enzyme can be inferred from a plot, cannot be inferred by a plot. It can be easily inferred by a plot. अगर इस तरीके का plot आता है तो allosteric है, so ये भी false हो गया. For an enzyme following Michaelis-Menten kinetics, the initial velocity is determined at the beginning when the enzyme substrate dissolution is insignificant. Yes, यही है, क्योंकि उसका पहला assumption ये था कि this Michaelis-Menten equation is given for an initial velocity. Question number 9. Michaelis-Menten enzyme kinetics for simple reaction involve enzyme and substrate is given by this particular scheme, जिसमें यहाँ तक Km की बात है और आगे की बात Kf कैट में है. क्या स्टेटमेंट हमारे सही है? पहला स्टेटमेंट, Km represent association constant. No, Km is basically dissociation constant, इसलिए ये बात तो गलत हो गई, ये तो फॉल्स हो गया, ये फॉल्स हो गया, दोनों ऑप्शन ही चले गए. Km represent the dissociation constant, बिल्कुल Km is a dissociation constant, तो B तो करेक्ट है. Kcat is a rate constant for chemical conversion of ES complex to substrate and to a substrate bound enzyme. No, it gives a free enzyme and free product. ये तो बात ही गलत हो गई, तो B and C भी हमारा false हो गया. Kcat by Km is a rate constant that refers to a properties and reaction of free enzymes and free substrate. Yes, this statement is true. Then क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया कि देयर आर 4 एंजाइमेटिक रिएक्शन ए बी सी एंड डी और रेट लिमिटिंग कौन होगा, और उसके लिए वैल्यूज किसकी दे रखी है, Km की वैल्यू. ई ए के लिए Km की वैल्यू दे रखी है 10⁻², ई बी के लिए दे रखी है 10⁻4, ई सी के लिए दे रखी है 10⁻5 और ई डी के लिए दे रखी है 10⁻4. तो Km की वैल्यू जितनी कम, एफिनिटी ज़्यादा.
Km की वैल्यू जितनी ग्रेटर है एफिनिटी कम होगी, और एफिनिटी जिसकी कम होगी वह रेट लिमिटिंग होगा, क्योंकि वो अपने सबस्ट्रेट को एफिशिएंटली रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। तो हमें ये देखना है कि इनमें से रेट लिमिटिंग कौन सा है। तो कौन सा रेट लिमिटिंग है अगर देखें तो जहां पर सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा 10⁻²है। 10⁻² इज लार्जेस्ट एज कम 10⁻4 और 10⁻5। सो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन थर्ड। प्लॉट बिटवीन V versus S and the V is generated for enzyme catalyzation and straight line is obtained, indicate the following information। तो हमारे पास इस तरीके का एक लाइन आ जाता है, इसमें ये वाला पॉइंट V max हो जाता है, और जो स्लोप है वो क्या बताता है, स्लोप गिव्स यू माइनस Km वैल्यू। बेसिकली ये ईडी हॉप्सी प्लॉट है। तो इससे हमें क्या पता चल सकता है, V max पता चल सकता है, टर्नओवर नंबर कैन बी ऑप्शन ओनली फ्रॉम प्लॉट ऑफ, नहीं ये बात तो गड़बड़ है कि उसी से पता चलेगा, नहीं टर्नओवर नंबर यहाँ से भी पता चलेगा। के एम बाय वी मैक्स फ्रॉम द स्लोप, नहीं स्लोप से माइनस के एम पता चलेगा। वी मैक्स पता कर सकते हैं, के एम पता कर सकते हैं, और टर्नओवर नंबर भी पता कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको वी मैक्स पता हो, एंजाइम की कंसंट्रेशन पता हो, तो आप टर्नओवर नंबर है वो भी पता कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया गिवन बिलो इज, इधर की तरफ प्रोडक्ट दे रखा है, इधर की तरफ टाइम दे रखा है। तो इससे हम क्या पता कर सकते हैं, पहली बात तो जो माइकलिस मेंटन इक्वेशन है उसमें इधर की तरफ V0 होता है और इधर की तरफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन होता है, और फिर रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक कर्व देखने को मिलता है, जिससे हमारे पास Km पता चलता है। यहाँ पर ये Km वाली बात नहीं है, ये टाइम है, और Km टाइम नहीं होता। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। पहला Km Vmax ऑफ एंजाइम, नहीं इसे पता ही नहीं चलेगा। Vmax इसके बारे में पता ही नहीं चलेगा, ये Vmax नहीं है, मैक्सिमम प्रोडक्ट है। द Km इज 15, नहीं। Neither Km nor Vmax of an enzyme can be determined from this data, because आप देखें तो सही, x एक्सिस पर टाइम दे रखा है, y एक्सिस पर प्रोडक्ट दे रखा है, तो इससे आप Km Vmax पता नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है कि टर्नओवर नंबर ऑफ एंड स्पेसिफिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम इन अ रिएक्शन Vmax 4 माइक्रोमोल सबस्ट्रेट, यानी Vmax आपके पास दे रखा है, कितना दे रखा है, 4 माइक्रोमोल ऑफ सबस्ट्रेट पर मिनट। एंजाइम की कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है, एंजाइम कंसंट्रेशन हमारे पास दे रखी है 2 माइक्रोग्राम। हमें पता क्या करना है, के कैट पता करना। तो के कैट को पता करने का फॉर्मूला क्या लगेगा, वी मैक्स बाय ई टी। तो वी मैक्स तो माइक्रोमोलर वाली फॉर्मेट में ही दे रखा है, पर ई टी आपको माइक्रोग्राम में दे रखा है, उसको हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मोलार के अंदर, ताकि हम आंसर मोल्स में पता करना पड़ेगा, और मोल्स में पता कर लिया तो आप आंसर निकाल सकते हैं। तो मोल्स में कैसे पता करेंगे, एंजाइम, और उसके अलावा हमें क्या पता करना है, एक तो के कैट पता करना है कि वह क्या होगा, और दूसरा हमें क्या पता करना है, स्पेसिफिक एक्टिविटी भी पता करनी है इधर की तरफ। ठीक है, तो एंजाइम की कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है, 2 माइक्रोग्राम। मॉलिक्यूलर वेट कितना दे रखा है, 40,000 डाल्टन, दैट इज 4 × 10⁴ डाल्टन। उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे कि अगर एंजाइम की कंसंट्रेशन 2 माइक्रोग्राम है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एंजाइम 40,000 है, यानी अगर 4 × 10⁴ ग्राम होता तो 1 मोलार होता, 1 ग्राम होता तो 1/4 × 10⁴ मोलार हो जाता, लेकिन अमाउंट कितनी है, 2 माइक्रोग्राम। 2 माइक्रोग्राम मीन्स 2 × 10⁻6 ग्राम। इसका मतलब उसकी मोलिटी कितनी आई, 0.5 × 10⁻10 मोलार। तो अब हमारे पास टर्नओवर नंबर निकालना है। टर्नओवर का नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, वी मैक्स बाय ई टी। वी मैक्स तो सीधा 4 माइक्रोमोलार दे ही रखा है, 4 × 10⁻6। आपने ई टी की वैल्यू यहाँ से निकाल ही ली, ये वैल्यू यहाँ पर प्लेस कर दें, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 80,000 पर मिनट। ओके, तो वी मैक्स आपके पास पर मिनट दे रखा है, तो ये भी हमारे पास पर मिनट आ जाएगा। स्पेसिफिक एक्टिविटी हम कैसे निकालेंगे, टोटल एक्टिविटी डिवाइड बाय एंजाइम कंसंट्रेशन इन माइक्रोग्राम। तो 4 माइक्रोमोल हमारे पास टोटल एक्टिविटी है, वी मैक्स दे रखी है, और अमाउंट कितनी दे रखी है एंजाइम की, 2 माइक्रोग्राम। तो 4 माइक्रोग्राम, 4 माइक्रोमोल को 2 माइक्रोग्राम से डिवाइड किया तो हमारा आंसर क्या आ गया, 2 माइक्रोमोल पर माइक्रोग्राम। ये हमारा करेक्ट आंसर आ गया। इसी तरीके से ये क्वेश्चन है, इसमें भी हमें क्या निकालना है,
टर्नओवर नंबर, और टर्नओवर नंबर होता क्या है, के कैट इज इक्वल टू वी मैक्स बाय ई टी, दिस इज द टर्नओवर नंबर। यहाँ पर एंजाइम की कंसंट्रेशन किस में दे रखी है, दे रखी है 20 माइक्रोग्राम, तो इसको भी पहले मोल्स में कन्वर्ट करो, कितना मोल्स, और V0 भी किस में दे रखी है, 10 मिलीग्राम पर मिनट दे रखी है, तो इसको भी आप किस में कन्वर्ट करो, मोल्स पर मिनट में कन्वर्ट करो, तो आंसर निकाल सकते हैं। तो कैसे करेंगे कि टर्न ओवर नंबर इज इक्वल टू वी मैक्स बाय ई टी, वी मस्ट बी इन अ मोलार पर मिनट, ई टी ऑल्सो शुड बी इन मोलार यूनिट, ये कन्वर्शन करना पड़ेगा तभी आप आंसर निकाल पाएंगे। तो ये कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम वी मैक्स पता कर लेते हैं। तो दे रखा है कि शुगर कितना लिबरेट होता है, 10 मिलीग्राम पर मिनट, मॉलिक्यूलर वेट कितना है 400। तो अगर 400 ग्राम लिबरेट होता है तो हम कहते हैं 1 मोलार है। 1 ग्राम अगर लिबरेट हो रहा है तो 1 डिवाइड बाय 400 मोलार, और 1 ग्राम नहीं, कितना लिबरेट हो रहा है 10 मिलीग्राम, तो 10 मिलीग्राम मतलब अगर 0.0 ग्राम लिबरेट हो रहा है तो कितना हो जाएगा, तो 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 0.01, ये हमारे पास 0.025 इंटू 10⁻⁴, ये हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, पी मैक्स। ऐसे ही एंजाइम की कंसंट्रेशन 20 माइक्रोग्राम है, मॉलिक्यूलर वेट कितना है 2 लाख दे रखा है, यानी 2 इंटू 10⁵। अगर 2 इंटू 10⁵ ग्राम होता तो 1 मोलार, 1 ग्राम होता तो 1 डिवाइड बाय 2 इंटू 10⁵, पर अमाउंट कितनी है एंजाइम की 20 माइक्रोग्राम, तो 20 माइक्रोग्राम मीन्स 20 इंटू 10⁻⁶। तो हमारा आंसर हो जाएगा जो भी 1 डिवाइड बाय 2 इंटू 10⁻⁵ मल्टीप्लाइड बाय 20 इंटू 10⁻⁶, इसको करेंगे तो हमारे पास ये आ गया ई टी। अब ये दोनों ही आ गए, तो अब तो लास्ट स्टेप आपके पास के कैट ही निकालना, और के कैट निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वी मैक्स बाय ई टी, इन दोनों वैल्यू को प्लेस करें, यहाँ पर आप वी मैक्स वाली वैल्यू प्लेस करें, यहाँ पर ई टी वाली वैल्यू को प्लेस करें, आपके पास सीधा आंसर आ जाएगा। ओके, तो इसमें वी मैक्स को भी मोलार वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट करना था, ई टी को भी मोलार वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट करना था। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है एंजाइम पैरामीटर्स ऑफ 4 आइसोएंजाइम्स दे आर गिवन बिलो। These isoenzymes are localized in different tissues. In liver, substrate concentration is around 0.2 micromolar. तो लीवर का आइसोएंजाइम कौन सा है, तो जहां पर जितनी कंसंट्रेशन होती है उतनी ही एफिनिटी वाला अगर एंजाइम है तो एफिशिएंटली काम करेगा। सो इसके पास केएम वैल्यू होनी चाहिए, इसके पास जो केएम वैल्यू है दैट इज 0.2 के पास 0.1। अगर ये वाले एंजाइम को अगर इस्तेमाल करेंगे तो उसकी केएम वैल्यू 1.5 और कंसंट्रेशन 0.2 माइक्रोमोलार है, तो एंजाइम नेग्लिजिबल एक्टिविटी करेगा, कोई काम का नहीं है, ये भी नेग्लिजिबल एक्टिविटी करेगा। और अगर केएम की वैल्यू 0.01 है और आप कंसंट्रेशन 0.2 रहते हो तो 100% काम करेगा, ये भी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। 0.1 km वाला दैट इज नियरेस्ट टू द फिजियोलॉजिकल कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट। जनरली आइसोएंजाइम्स कहाँ पर कौन सा होगा, डिपेंड इस बात पर करता है कि वहाँ पर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन क्या रहती है, उसके हिसाब से वहाँ पर पर्टिकुलर आइसोएंजाइम को एक्सप्रेस किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है कि कैटेलिटिक एफिशिएंसी के बारे में क्या बात सही, और कैटेलिटिक एफिशिएंसी का फॉर्मूला दे रखा है के कैट बाय के एम, और हमारे पास क्या दे रखा है, प्रोटीन कंसंट्रेशन ए की कितनी है 1, बी की हम ले रहे हैं 4 और सी की ले रहे हैं 2, और इधर की तरफ एक्टिविटी है, तो एक्टिविटी बेसिकली के कैट ही है, एक्टिविटी इज अ के कैट। तो बी की एक्टिविटी कितनी है 30, पर उसकी अमाउंट कितनी है 4, तो स्पेसिफिक एक्टिविटी कितनी आ रही है, यानी के कैट बाय के कैट कितना निकल कर आएगा, सो एक्टिविटी डिवाइड बाय हमारे पास अमाउंट जो भी एंजाइम की है, ऐसा करने पर ये हमारे पास स्पेसिफिक एक्टिविटी या एक एंजाइम की एक्टिविटी निकल कर आ जाएगी। तो टोटल एक्टिविटी डिवाइड बाय द टोटल अमाउंट ऑफ प्रोटीन, यू विल गेट द एक्टिविटी ऑफ सिंगल एंजाइम। तो यहाँ पर लगभग यू कैन से द एक्टिविटी इज 7 पॉइंट समथिंग आ जाएगी, 7.5 के आसपास। ए की एक्टिविटी कितनी आ रही है 20 और अमाउंट भी 1 मिलीग्राम है, तो इट विल कम आउट टू बी 20। सी की वैल्यू है वो लगभग यू कैन से इट इज अप्रोक्सीमेटली अराउंड 14, और अमाउंट कितनी है सी की 7। तो ये की कैट वैल्यू आ गई, के एम वैल्यू 30, तो 30 का हाफ होता है 15, और 15 पर ये के एम वैल्यू आ गई,
ए की वैल्यू 20, 20 का हाफ होता है 10, के एम वैल्यू ये आ गई। सी की वैल्यू लगभग 14 के आसपास, की हाफ 7, और 7 पर के एम वैल्यू, यानी के एम वैल्यू सबकी सेम है। तो के एम इज सेम, 1 1 1 मान लें। तो सबसे ज़्यादा के कैट बाय के एम किसकी आएगी? ऑब्वियसली ए की, उसके बाद बी की, उसके बाद सी की। करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया द के कैट बाय के एम वैल्यूज ऑफ एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन व्हेन प्लॉटेड फंक्शन एज पीएच। के कैट बाय के एम वैल्यूज ऑफ एन एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन व्हेन प्लॉटेड एज अ फंक्शन ऑफ पीएच। पीएच के साथ के कैट बाय के एम को प्लॉट किया तो हमारे पास एक बेल शेप्ड कर्व है। मैक्सिमम 6 पर है, यानी एंजाइम एफिशिएंटली सबसे 6 पर काम कर रहा है। इसका मतलब इसकी एक्टिव साइट में कुछ ऐसे एंजाइम्स होने चाहिए जो कि पीएच 6 पर सबसे बढ़िया ढंग से काम करें। तो आंसर क्या हो गया? हिस्टिडीन मे बी इंपॉर्टेंट फॉर कैटालिसिस बिकॉज हिस्टिडीन की पी की वैल्यू कितनी होती है? 6। एंजाइम इज स्टेबल एट 6? नहीं, स्टेबिलिटी इज नॉट इंपॉर्टेंट, इट्स मस्ट बी इन एक्टिव कन्फॉर्मेशन, दैट इज इंपॉर्टेंट। नहीं, मैक्सिममली एक्टिव 6 पर होगा, उसके अबव और बिलो नहीं। मेटलाइन रिक्वायरमेंट है? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है कि देर आर डिफरेंट सब्सटेट पी ए पी ए जी, उसके यहाँ पर कट लगाता है, इसमें यहाँ कट लगाता है, इसमें यहाँ पर कट लगाता है, एंड इट इज कटिंग आफ्टर एन एलेनिन। ओके, तो के अब कहा गया है कि एरो से क्लीवेज साइट है और हमें पता लगाना है कि कौन रैपिडली डाइजेस्ट होता है। तो कौन रैपिडली डाइजेस्ट होता है उसके लिए हमें के कैट बाय के एम की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तभी हम उसके बारे में प्रिडिक्शंस कर सकते हैं। तो यहाँ पर 26 डिवाइड बाय 4, यू कैन से लगभग 6.5 के आसपास आंसर आ जाएगा। 52 को 30, 1.5 डिवाइड बाय 1.5 को हम अगर 37 से डिवाइड करें तो 1.5, 15, 2 30, ऑलमोस्ट अराउंड यू विल गेट 22 और 23, लेट्स से 18 और 6, 18, 180 और 6 मान लेते हैं, 6 लगभग ऑलमोस्ट यू गेट अ 30। सो यू विल से दैट मोस्ट सबसे ज़्यादा यहाँ पर, देन सेकेंड एंड थर्ड नंबर पर ही। सो फर्स्ट स्टेटमेंट PAF is digested most of it. Yes, this is true क्योंकि इसकी 30 वैल्यू आ रही है। PF is digest most of PAPAG, नहीं ये तो गलत हो गया, B false है। A hydrophobic residues at C terminus seem to be favored. C terminus पर हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड रेसिड्यूज है, वह फेवर किया जा रहा है। यस, अब देख रहे हैं सभी जगह पर एलेनिन है एंड दिस इज बीइंग फेवर्ड। यस, दैट्स ट्रू। A small residue at C terminus need is looks to be unknowing, स्मॉलर नहीं, आप देख रहे हैं सी टर्मिनस पर स्मॉलर रेसिड्यू सी टर्मिनस सीम टू बी फेवर्ड, नहीं ऐसा नहीं लग रहा है क्योंकि फिनाइल एलेनिन है, उसको फेवर किया जा रहा है। इलास्टेज ऑलवेज रिक्वायर स्मॉल रेसिड्यूज एट एन टर्मिनस। यस, एन टर्मिनस पर हमेशा क्या चाहिए? एलेनिन। ये एन टर्मिनस है, ये सी टर्मिनस। सी टर्मिनस पर हमेशा ही हाइड्रोफोबिक चाहिए, हाइड्रोफोबिक में भी लार्ज चाहिए, एन टर्मिनस पर एलेनिन चाहिए। तो ये भी सही है। तो ए, सी एंड ई आर करेक्ट स्टेटमेंट। ये भी बिल्कुल उसी सेम कंसेप्ट पर ये एक बार और क्वेश्चन आया है। इसमें भी आपको के कैट बाय के एम वैल्यू निकालनी है। कट कर रहा है एलेनिन के बाद यहाँ पर वाई एक्स एलेनिन, फिर जेड वाई एक्स एलेनिन, वाई एक्स वैलिन, फिर उसके बाद कट लगा रहा है यहाँ पर वैलिन, बाकी 3 जगहों पर एलेनिन है। तो यहाँ पर आपके पास के कैट बाय के एम निकाल लें तो ये 0.01 और ये 100 से और डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10⁻⁴ के आसपास, 0.1 10⁻1 को और अगर 4 से डिवाइड कर लें तो हमारे पास तो 10 वैल्यूज़ को निकाल लें 100 इंटू 0.1 इंटू 10⁻² डिवाइड बाय 4, दैट इज 25 इंटू 0.1 इंटू 10⁻², दैट इज यू कैन से 0.025, कुछ ऐसी वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ पर 0.001 आ जाएगा, 8 और 4 यहाँ पर 2 वैल्यू आ जाएगी,
6 डिवाइड बाय 35, 6 डिवाइड बाय 35, 166, यहाँ पे वैल्यू 0.12 के आसपास आ जाएगी. सो कैटालिटिक एफिशिएंसी इंक्रीजेस विद द साइज ऑफ पेप्टाइड. यस, इट सीम्स लाइक, ये आप देख रहे हैं वो इंक्रीज हो तो रही है, ये 3 अमीनो एसिड्स ऐसा लग तो रहा है, इंक्रीज हो रही है. अमीनो एसिड एट हाइड्रोलिटिक क्लीवेज पोजीशन ऑफ पेप्टाइड इज क्रिटिकल फॉर बाइंडिंग ऑफ पेप्टाइड विद द प्रोटीएज. यस, इट इज वेरी क्रिटिकल. यहाँ पर किस तरीके का आप देख रहे हैं, वैलिन आते ही एक्टिविटी वापस घट गई, जबकि एलेनिन एलेनिन है तो कंपेरेटिवली ज़्यादा है. सी स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कैटालिटिक एफिशिएंसी डिक्रीजेस फ्रॉम 3 अमीनो एसिड पेप्टाइड टू 4 अमीनो एसिड. नहीं, 4 अमीनो एसिड में तो बड़ी है, ऐसा बात गलत है, बी फॉल्स है. तो करेक्ट ए एंड बी हो गए. क्वेश्चन नंबर 21 बहुत सिंपल सा है कि आपके पास ये 1 बाय वी मैक्स की वैल्यू दे रखी है. 1 बाय वी मैक्स इज 40 माइक्रोमोलार, जो भी है उसका रेसिप्रोकल लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, वी मैक्स. तो 1 बाय वी मैक्स 40 माइक्रोमोलार है, तो वी मैक्स क्या हो जाएगा 1 बाय 40, ये आंसर आ गया. ऐसे ही के एम की वैल्यू के लिए 1.1 बाय सबस्ट्रेट वाली एक्सेस दे रखी है, यानी 1 बाय के एम की 1 बाय के एम की वैल्यू कितनी दे रखी है, -1.5 इंटू 10⁻², -1 बाय के एम की ये वैल्यू दे रखी है. तो के एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसका रेसिप्रोकल लेकर -1 से मल्टीप्लाई कर लो, यू विल गेट दिस वैल्यू. तो बहुत सिंपल सा है, हमने पढ़ा था लाइन व्यूअर बार प्लॉट में आपको क्या करना है, आप वाई एक्सिस का रेसिप्रोकल लोगे तो वी मैक्स और एक्स एक्सिस का रेसिप्रोकल लोगे तो के एम आ जाएगा, पर के एम के लिए फिर -1 से और मल्टीप्लाई करना है. क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया है एन एलोस्टिक एंजाइम हैज 2 हेटेरोट्रोपिक इफेक्टर्स x and y. The allosteric constant L for an enzyme in F, so there is a x and then there is a y. The allosteric constant L for an enzyme in absence of effector molecule is 180. Originally it is 180. And what is allosteric constant? That is a, you can say, tense state by equilibrium of tensed by relaxed state, that is called as the allosteric constant. For x saturated form the L increases. x क्या करता है, इसको 180 से बढ़ाकर 1200 कर देता है. इसका मतलब x मस्ट बी एन इनहिबिटर, क्योंकि वो बढ़ा रहा है इसकी वैल्यू को, t0 स्टेट को बढ़ा रहा है. y है 180 को घटाकर 60 कर रहा है, इसका मतलब दैट मस्ट बी एन एक्टिवेटर. सो व्हाट इज कंक्लूजन, x बोथ आर पॉजिटिव रेगुलेटर? नो, x is negative regulator and y is positive regulator. Yes, this is true. Question 23. Which of the following statement is not correct? पहला स्टेटमेंट दे रखा है एलोस्टिक एंजाइम डू नॉट ओबे माइकल्स-मेंटन काइनेटिक्स. ट्रू है, दे ओबे हिल्स इक्वेशन. The free energy chains provide information about the spontaneity but not a rate of reaction. Yes, that is true. Can tell whether reaction will happen or not, but can't tell a rate of reaction. Competitive and non-competitive inhibition are kinetically indistinguishable. No, they are distinguishable. आराम से हम उनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, इसलिए फॉल्स हो गया. A kcat by km value of 2 into 10⁸ for an enzyme indicate the value is close to diffusion control rate of encounter. Yes, ये तो हमने क्लास में पढ़ा था, बिल्कुल सही बात है. इससे ज़्यादा और स्पीड kcat by km का रेशियो देखने को नहीं मिलता, बिकॉज इट इज ऑलमोस्ट क्लोज टू diffusion controlled rate. Choose the incorrect statement from the following statement for enzyme catalyzed reaction. The kinetic properties of allosteric enzyme do not diverge, they diverge. Why they do not diverge? पहला ही गलत है, हमें इनकरेक्ट ही ढूंढना था. एलोस्टिक एंजाइम दे ओबे अ हिल्स इक्वेशन. एलोस्टिक एंजाइम का कर्व ऐसा सिग्मोइडल है और माइकल्स मेंटन का इस तरीके का है, बिल्कुल डिफरेंट बातें हैं. देन क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया है the hydrolysis of pyrophosphate to orthophosphate is important for several biosynthetic reaction. In E. coli, molecular mass of enzyme is 120 kilodalton. It is composed of 6 subunits. The enzyme activity is defined as amount of an enzyme. Enzyme activity is defined as amount of an enzyme. Activity is defined as 10 micromole of substrate in 15 minutes. So अब हमारे पास this is an activity that has been defined. The purified enzyme has Vmax of activity या units, ये होती है Vmax of 2
2800 units. तो हाउ मेनी मोल्स ऑफ सबस्ट्रेट आर हाइड्रोलाइज पर सेकंड पर मिलीग्राम, तो पर सेकंड में कन्वर्ट करना है पर मिलीग्राम, मोल्स पर सेकंड में, तो ये तो बहुत सिंपल सा है, 2800 यूनिट्स हैं, मीन्स 2800 इंटू 10⁻⁴ माइक्रोमोल डिवाइड बाय 50 मिनट्स में है, हमें मिनट्स में नहीं निकालना, हमें सेकंड में निकालना है, तो सेकंड में निकालने के लिए इसको हम किस में और डिवाइड कर लेंगे, 60 से, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 2800 इंटू 10 माइक्रोमोल, आंसर माइक्रोमोल में है तो माइक्रोमोल रहने देते हैं, माइक्रोमोल 15 इंटू 60। ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो प्रोबेबली आंसर 31.1 माइक्रोमोल आ जाएगा। ओके, सो आंसर वुड बी ऑप्शन थर्ड। So these were the questions from the enzyme part. So we have completed almost all questions up to now. So thank you, और आप वापस इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिएगा, वापस पॉज प्ले करके देख सकते हैं।